So, very good afternoon, dear students. I am Dr. Anirudh Vijay from Department of Management Studies, School of Open Learning, DU. And today we will begin with this subject of your fourth semester. I think this is the first day of fourth sem. And today onwards we will be beginning with this subject, human resource management. Okay. And what is the subject code? Have you gone through with the syllabus? Not yet. Have you downloaded it? Where it is available? Everything is MS Team only. Site पे है ना? So you can download it from there, and if it is, and again, and the book which I will refer for this subject is one is your SLM. I think it is not available yet, and it is because it is under printing. Okay, so I was the one who have again as an editor I have collected all the chapters and it will be published very soon. Then you will be able to receive it from the as well. Okay, in a hard form, and soft copy you can download it from your website. But it will take couple of time. And maybe by Feb you will be able to receive it. So if I say this term, that is human resource management, what does it mean according to you? So was this is the only strength since morning? There were, okay, now only 5 left. Fine. So what do you mean by this human resource management? Human plus resource plus management. What does it mean? Managing the, okay, managing the workforce of the organization, and managing the human factor or the human resource which is available in an organization. That is called human resource management. What else? जितना आता है उतना बता सकते हो, है ना? Not necessary you will always speak right, है ना? But your speaking, your participation is more important, है ना, than right or wrong. So please try to participate in the class from day one and in the upcoming classes also. So what does it mean? Managing the resources. Managing resources फिर तो वो economics हो जाएगा शायद. Because in economics I think you will be going through with the factors of production. What are the factors of production? आज ही पढ़ाए क्या? Land, labor, capital and enterprise. So managing those factor comes under the head of economics. But here we are talking about managing the human factor, right? And when we use this term management, what does it mean? This is it. Okay, we'll come to this. This is the syllabus of your first unit. Just quickly go through with it that what we are going to cover in the first unit. HRM, concept, function. And when it is written concept and function, it doesn't mean only concept. Concept means meaning. And function. क्या ये दो ही चीज आएंगी इसके अंदर? There are so many things, है ना, which is not written here, but it is implied. Like functions. Function is written over here. We can say the importance, scope, and quality of a good. We can say the good human resource manager. These things comes under this particular head. And when we talk about this term concept, it means all this. है ना, that we will cover one by one. Nature भी आ जाएगा इसमें. Nature of human resource management. And then we have HRD. HRD means human resource development. So related definition, goals, challenges. Then we have changing environment means when the global interventions are there. As you know, now we are in the digital era. है ना, the global era is connected by way of internet. So internet के through when we are connected, it means everything is local for us. Everywhere we can sell and we can purchase from anywhere. Is it so or not? The websites are there, just order and you can get the order from them. So similarly, that's why what are the related challenges related to the globalization, cultural environment? Because you know very well there are so many MNC companies. What does it mean MNC? Multinational companies means those who are operating in more than one nation. And when you are operating in more than one nation, then there are the workforce who comes from the different region also, from the different countries. Then cultural issues are also there, right? Then we have technological advances. So if I give you one example of banking, Indian banking system,
है ना, 10 year or 15 year down the line, you know very well that the everything was on paper only. अगर if you want to get the withdrawal, you have to go into the queues of banks, you are presenting your check or you are filling your withdrawal slip, then you are able to get the money from them. Now is it necessary at present time? Paytm is there, you need not even cash, and if you need cash you can go to the ATM and you can withdraw it from there only. No more queues are there. But changing face है ना, कि वो डिजिटल से सॉरी ट्रेडिशनल से डिजिटल होने में कितने सारे चैलेंजेस आए थे, यू नो, जो उस टाइम के वर्क फोर्स जो मैनेजर्स थे, ब्रांच मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने मना कर दिया कि हमें ये चाहिए नहीं. क्यों? क्योंकि उनको सीखना पड़ेगा. दे हैव टू लर्न द कंप्यूटर एंड हु विल टीच देम? A young 18 year or 20 year boy is teaching to the 60 year or 55 year old MD or CEO or these kind of people, branch manager, assistant branch manager. So because of that reason there were conflict है ना regarding learning these things new. So these technological advancements, now we talk about present, then also every day you will find new technology comes into the picture है ना. So many new things nowadays. What is new boom in the field of technology? AI है ना, आजकल तो AI का आप नाम सुनते हैं, ठीक है. सो अगेन यू हैव टू accommodate all those challenges which are coming because of intervention of new technology in the market. Do we need to accept them for our work culture, for our processing or not? Because technology always comes with the price. If you need to buy a technology or a software for your organization, what is important? Not only the cost is there, but you have to train your entire workforce for that particular technology. That also comes with the cost. It becomes expensive. So it is a long-term decision. When to take the decision, again a challenge for the organization. Then we have workforce diversity. जो अभी हम बात कर रहे थे, diversified workforce, different culture, different dressing sense, different languages, है ना. How to accommodate all these things into a one HR policy? Again a big challenge for the organization. The next is corporate downsizing. अभी आपने जाना हो, अभी देखा होगा आपने कि TCS ने अभी अपने 1000 एम्प्लॉय निकालने वाले हैं. वो ये पढ़ी न्यूज आपने? नहीं पढ़ी? अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज है. बिकॉज यू नो द IT सेक्टर इज अगेन द डाउनफॉल इज देयर इन द IT सेक्टर है ना. अब वहां पर इस समय दिक्कत है, तो और उसकी वजह से कई सारी कंपनीज अपने जो आपके IT प्रोफेशनल है उनको बाहर कर रहे हैं. तो डाउन साइजिंग मीन्स द सेम कि हमें अगर हमारी वर्कफोर्स 10,000 है, उसको 9,000 करना है, 8,000 करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट वे आउट? इज इट सो कि हम उसको सीधा फायर कर दें? और देयर आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन डू दिस. अगेन अ क्वेश्चन मार्क फॉर द HRM. द नेक्स्ट इज changing skill requirement. Means with the passage of time, as you know, everything is changing, as I said. Accordingly, what are the different skill set which will be required for accommodate those changes? है ना. तो वो changing इसको हम बोलते हैं change management. Whenever the changes are there in the organization, what sort of policies we need to drive, we need to initiate, we need to formulate and implement. All these things comes under this particular point. The next is HRM support for improvement programs. Improvement programs means so many development programs organization runs. यानी जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनकी स्किल को एनहांस करने के लिए, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं? डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करती हैं. कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं जिससे कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके और वो उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप कर सके. अब ये कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है? सपोज यू आर वर्किंग इन ऑपरेशन और आपको HR का भी कुछ पार्ट सिखा दिया जाता है कि आगे आने वाले टाइम में यू कैन ऑल्सो गो थ्रू और यू हैव टू वर्क इन द HR सेगमेंट ऑल्सो. So for that purpose you are going undergone a particular training program so that you can learn all those things, right? That is called this improvement program. So whenever what will be the time period when we need to begin these kind of improvement program, that again need to be planned by the HRM. And the next is work life balance, most important. You know very well, when you are working somewhere, then there are two phases of your life, two part of your life. One is professional life, the other one is personal life. You need to balance both. If you are focusing only on the personal life, you may not be able to work efficiently. If you are focusing more on the professional life, you may not be able to manage your personal life. So if these kind of balances can be provided by the organization, for example, you know very well work from home system. घर पर भी आप हैं, काम भी कर पा रहे हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं आपके पास शिफ्ट के, you can work in entire 24 hours whenever you want. In that case, maybe up to some extent, your work-life balance will remain much better than those companies where physical work environment is there. But again, it is not necessary or applicable in each and every segment. Suppose manufacturing करनी है, कार की स्टीयरिंग बनाने वाली कंपनी है, अब वो बोलते घर जाके बना लो अपने, क्या होगा?
You cannot get the same uniformity in the steerings, है ना, and it is not possible कि हर एक के घर में प्रोडक्शन सिस्टम लगा है, वो स्टीयरिंग बना बना के फिर लेके आ रहे हैं. You can imagine the scenario. तो but wherever it is possible, you have to try to implement. And even in these kind of organization, which I am talking about, like manufacturing segment, is it possible there to apply some of the techniques to improve the work-life balance? Yes. You can give them more offs, है ना, आप उनको जो शेड्यूल्ड ऑफ है वो ज्यादा दे सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं. ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे ऑफ रहेगा. यू कैन गेट एनी 2 days ऑफ. This we can provide. In that way also they can manage their work life up to more extent than those scenario when the fixed shifts are there. ठीक है. And what we can do, we can replace the people also sometimes. You can give buffer time to those people. Again, it depends on the organization that how they can manage. In that way you have to manage the work life. So in that way we will go further. So first we will come to the definition. And prior to definition, this is the key assumption of human resource management subject. And as I said, SLM is still in the printing process. So what you can do, you can refer one book that is called, that is a name on K. Ashwath Thapa, है ना, आप इसका नाम नोट कर लीजिए. And when we will be having the online session, I will be sharing this book on Teams as well. ठीक है, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा. I have the soft copy that will be available with you. तो the best book, again there are so many. Pearson की भी मिल जाएगी आपको, मैग्रो की भी मिल जाएगी. But one of the best book which you can refer is by K. Ashwath Thapa, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बुक. ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं फॉर योर नॉलेज. सो एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज द की assumption? Okay, prior to go through with this line which is written over there, what do you mean by assumption? assumption क्या होती है? कुछ assume कर लेते हैं हम, कुछ मान लेते हैं. what does it mean? That is, any example? Okay, any example? In terms of, like it is written over here, related to any subject. Okay, good. और आप लोगों ने भी assumption पढ़े होंगे ना, जब आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे कई सारे. इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है आपने 12th में? पढ़ा है. अकाउंट्स भी पढ़ी है ना. और क्या क्या पढ़े हैं? मैथमेटिक्स पढ़ी है सबने, तो मैथमेटिक्स पढ़ी है ना. लेट द वेट ऑफ ए इक्वल एक्स, ऐसे करके क्वेश्चन करते थे ना, तो वो भी तो assumption थी. तो क्या उसका वेट x होता है? x तो किसी का वेट नहीं हो सकता. बट वी assume so that we can solve it further. So I can give you one example of suppose law of demand. पढ़ा है आप लोगों ने सबने? सबका कॉमर्स बैकग्राउंड है? किसका नहीं है? पांचों का है मतलब? अरे कोई बात नहीं, बता दो. हाँ ना, सबका है ना. आप नहीं बोल रहे हो, है ठीक है. तो लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट डज इट मीन? इफ प्राइस गोज अप, डिमांड विल डिक्रीज, एंड इफ प्राइस गोज डाउन, डिमांड विल इंक्रीज. यही है ना लॉ ऑफ डिमांड. तो क्या गोल्ड में अप्लाई करते हैं इस लॉ को? इफ प्राइस विल गो अप, डिमांड विल गो डाउन. ऐसा होता है क्या गोल्ड के केस में? पहले जब गोल्ड, आज से 15-20 साल पहले गोल्ड 4000 रुपीज पर 10 ग्राम था. आज कितना है? 63 है ना, लगभग 63 के आसपास है. तो क्या डिमांड कम हो गई? इट इज ऑलमोस्ट सेम, और इट इज इंप्रूविंग, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट गेटिंग डिक्रीज्ड. तो ये लॉ तो फेल हो गया. फिर तो लॉ बनाने वाले ने गलत लॉ बना दिया. क्यों हुआ ऐसा? जब हमारा लॉ ये कहता है कि इफ द प्राइस विल गो अप, द डिमांड विल गो डाउन. ये तो नहीं हो रहा. लग्जरियस आइटम, तो ये लग्जरियस आइटम किस में आते हैं? एजम्पशन में आते हैं ना. ऐसे पेट्रोल का एग्जांपल ले लीजिए, सेम चीज. पहले कभी उसका दाम 20-30 रुपए लीटर भी था, आज वो 100 रुपए के आसपास चल रहा है ना, 96-97. क्या डिमांड कम हो गई उसकी? नहीं हुई, बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी आइटम, इट इज द डिमांड विल एग्जिस्ट. चाहे 200 हो जाएगा तब भी डिमांड ये रहने वाली है. हल्का फुल्का उस पर असर आएगा, ज्यादा असर नहीं आने वाला. तो दिस इज कॉल्ड अजम्पशन. हमने मान लिया. हमने क्या माना कि अगर गिवन गुड्स होंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, इफ द सप्लीमेंट्री गुड्स आर देयर, इफ द लग्जरियस आइटम्स आर देयर, इन दैट केस डिमांड लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल.
उस केस में वो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। जब नॉर्मल सिनेरियो होगा, है ना, तब ये लॉ जो है वो आपका अप्लाई होता है, ठीक है, इन द नॉर्मल कमोडिटीज विच वी परचेज ऑन डेली बेसिस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पीटर इंग्लैंड का ले लेते हैं। अभी मान लो पीटर इंग्लैंड की शर्ट आती है, शर्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, 2000 की मान लेते हैं ऑन एवरेज, वो कर दे 5000 की, तो क्या उसके पास अपने लोग लेने जाएंगे? बहुत ज्यादा उसकी डिमांड पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स, पीपल विल शिफ्ट ऑन दोस ब्रांड्स, लुई फिलिप चले जाएंगे या कोई और जो ब्रांड्स है वहां चले जाएंगे। ठीक है, तो उसका असर उस पर्टिकुलर ब्रांड पे जरूर पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन। सिमिलरली हियर इन द केस ऑफ एचआरएम एंड सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर ऑफ द वी कैन से एनी, आप जो भी फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या है स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल बोलता डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो ये भी अजम्पशन के ऊपर है, ये ऐसे ही नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें भी कुछ ना कुछ एज्यूम किया गया होगा, हाइपोथेसिस मानी होगी, देन इट इज एप्लीकेबल, नॉट इन एवरी सिनेरियो। ठीक है, ग्रेविटी हटा दीजिए, अप्लाई हो जाएगा रूल? नहीं होगा। ठीक है, कम टू दिस, तो व्हाट आर द की अजम्पशन इन एचआरएम? एम्प्लॉइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मींस फॉरगेट अबाउट योर लैंड, योर कैपिटल, योर एंटरप्राइज। चाहे ये तीनों फैक्टर आपके पास है, और अगर ह्यूमन फैक्टर आपके पास अच्छा नहीं है, आपकी कंपनी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। आपके पास कैपिटल नहीं है, आप सर्वाइव कर सकते हैं, डू यू एग्री और नॉट? देयर आर सो मेनी वेज फ्रॉम वेयर यू कैन एंगेज द कैपिटल। अगर ओनर के पास पैसे नहीं है तो क्या वो कंपनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर सकता है, अप टू ए नंबर ऑफ इयर्स दे कैन रन बाय वे ऑफ एंगेजिंग कैपिटल फ्रॉम मेनी सोर्सेज, एंड दैट वे दे कैन अगेन रन देयर साइकिल ऑफ कैश। लैंड नहीं है तो कैपिटल नहीं चलेगी क्या? मान लो जमीन ही नहीं है किसी कंपनी के पास, तो क्या कंपनी नहीं चल सकती? चल सकती है ना। अमेजन का एग्जांपल ले लीजिए, या हम कोई भी ऐसी, अमेजन छोड़ दीजिए, आप कहेंगे उसके पास ऑफिस भी है ना, हम बहुत सारी ऐसी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं जिनके पास लैंड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे मैं अगर आपकी ही बात करूं, आपने चैनल बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू कर दिया, कैसे? यूट्यूब के थ्रू। तो क्या उसके लिए लैंड परचेस करने की जरूरत थी? वहां फीता कटवाना था किसी से? सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए था या मोबाइल चाहिए था, और आपको वीडियो बनाने थे केवल अपने, या ऑडियो भी रिकॉर्ड करोगे तो भी पढ़ा दोगे, आपके फॉलोअर दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे, अच्छा पढ़ाओगे तो क्या उस एंटरप्राइज के लिए क्या कोई रिक्वायरमेंट है लैंड की? नहीं रिक्वायरमेंट है। एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट है, मतलब ब्रांड नेम की है रिक्वायरमेंट? नहीं रिक्वायरमेंट है। मान लो आज मैं चैनल स्टार्ट करता हूं तो वो तो ब्रांड ही नहीं है ना, मैं उसको XYZ नाम दे दूं तो भी चल जाएगा, ABC नाम दे दूं तो भी चल जाएगा। आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, और आपकी यहाँ सर्विस आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेटर ऑन इट इज रिक्वायर्ड बट नॉट एट द वेरी इनिशियल स्टेज। बट ह्यूमन फैक्टर के बिना कोई भी कंपनी सोच के देखिए, एनी AI का भी नाम ले लीजिए आप, क्या वो पॉसिबल है बिना ह्यूमन फैक्टर के? नहीं पॉसिबल है। तो ह्यूमन फैक्टर इज वन रिसोर्स और द की इंग्रेडिएंट टू रन और टू इनिशिएट एनी ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं है ना कोई रोबोट कंपनी बना के बैठा है, वो अपनी चला रहा है कंपनी, हालांकि रोबोटिक्स भी इंसान नहीं बनाया ना, तो ह्यूमन फैक्टर इज आल्सो रिक्वायर्ड ओवर देयर। तो नथिंग कैन रन इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन। समवेयर यू विल फाइंड ह्यूमन फैक्टर इज द बैकबोन ऑफ एनी कंपनी। इफ यू विल गो टू द प्लांट ऑफ अमूल डेयरी, अमूल का नाम सबने सुना है ना, तो वहां पर जो प्रोडक्शन होता है क्या वो इंसान करते हैं? दूध आता है उसके अंदर, टैंकर्स के अंदर दूध आता है, वहां पर उसको वहां पर अनलोड किया जाता है, वहां के जो टैंकर्स बने होते हैं, और उसके बाद पूरा मशीनरी प्रोसेस है। लेकिन अगर ह्यूमन फैक्टर ना हो तो क्या वो रन कर जाएगा? अगेन देयर आर सो मेनी पीपल रिक्वायर्ड, दोज हु आर इंश्योरिंग यस एवरीथिंग इज फाइन। अगर कहीं भी कोई फ्लो आता है, कहीं भी कोई ग्लिच आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ह्यूमन फैक्टर वहां अवेलेबल है। Otherwise, maybe a day or so it can run. Otherwise, problem will come again because some problems are there in the plant and no one is there to look into this. And what will happen? Your all those product which you are manufacturing, which will be having substandard quality because of some defect in your plant itself. That's why here it is written, employees are the most important asset of the organization. किसी भी organization, आप organization के किसी भी asset से आप compare कीजिए, you will find they are the most important. अगर हम नाम लेते हैं कंपनीज लाइक एप्पल, कंपनीज लाइक गूगल, ये सक्सेसफुल क्यों हैं? बिकॉज दे हैव बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स इन कंपैरिजन टू द अदर कंपनीज। और बेस्ट उनके पास क्यों है? इसका रीजन क्या है? नहीं, दे आर गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नहीं, वो तो कोई भी है एम्प्लॉय, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, हम सबकी बात कर रहे हैं, उसके पास बेस्ट है।
वो बेस्ट उसके पास क्यों है? किसी एबीसी आईटी लिमिटेड के पास बेस्ट क्यों नहीं है? मैनेजमेंट इज गुड, मैनेजमेंट तो बहुत कंपनी का गुड है, फिर भी वो नंबर 1 नहीं है, क्योंकि उनकी सबसे अच्छी, हम कह सकते हैं अगेन, ब्रांड नेम बन गया ना वो आज की डेट में, पहले तो ब्रांड नेम नहीं था, बट दे हैव मोस्ट एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉलिसीज, दे हैव बेस्ट पैकेजेस in that particular segment in which Apple runs. No one gives that kind of packages which is given by the Apple. No one gives those kind of employee friendly policies which is given by the Apple. No one is offering them. Or now the companies are trying to provide those kind of facilities. But still what is there? Now the Apple has become number 1 brand in the world. और जब वो बन चुका है तो भी लोग उसमें काम करना चाहते हैं। पहले तो ये था कि आपको बनना था, उस समय आप इस तरह से आप अपने जो बेस्ट क्वालिटी वर्कफोर्स थे उसको आप एंगेज करते थे। जब वो बन गया है तो लोग खुद चाहते हैं कि हमें इसका पार्ट बनना चाहिए। तो जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है वो कहाँ चाहता है? वहीं काम करना चाहता है। जैसे हम बात करें अगर उसकी, हम अगर स्पेस एजेंसीज की बात करते हैं तो एवरीवन हैज ए ड्रीम टू ज्वाइन नासा। नासा ज्वाइन करना चाहता है ना। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, पाकिस्तान भी है, इनका भी तो स्पेस एजेंसी है। तो वहां लोग काम क्यों नहीं करना चाहते पाकिस्तान में? सो मेनी फैक्टर्स ना, रिस्क फैक्टर भी है, वहां काम करेंगे पता चला हिंदू है मार दिया ऐसे, है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और उसके बाद दे मे नॉट बी एबल टू ऑफर दोस काइंड ऑफ क्वालिटी लाइफ व्हिच यू कैन हैव इन द अमेरिका, दैट्स व्हाई पीपल आर मूविंग ओवर देयर। अगर हम एक जनरल माइंडसेट की बात करते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई यू नो वेरी वेल कि जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? यूएस चले जाते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर कहाँ चले जाते हैं? यूएस चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? बिकॉज they also want to have a better quality of life which is not, they may not be able to experience in the country. ये जो होता है ना माइग्रेशन, इसी वजह से होता है, सबके अपने पर्सनल रीजन होते हैं, ठीक है। तो that's why I'm again saying employees are the most important key asset for any organization. If you have good human brain in the organization, definitely the success will come. May be possible कि you can also defeat the companies like Apple in the near future if you have the good quality workforce. और ये क्या है कि R&D की जब हम बात करते हैं ना, एप्पल क्यों इतना आगे है? क्योंकि उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उसको जितना डिजायर्ड पैकेज चाहिए वो, अगर किसी उस कंपनी को लगता है कि ये एक ह्यूमन ब्रेन है जो हमारे लिए बहुत सा काम कर सकता है, दे गिव एज मच एज दे वांट, देयर इज नो बार इन टर्म्स ऑफ सैलरी पैकेजेस। और उसी वजह से आप देखेंगे कि जो नए नए इनोवेशंस होते हैं इन द मोबाइल फोन, वो एप्पल ही लेके आता है। आप डिजाइन का देख लीजिए एप्पल का, यू कैन नॉट कंपेयर एनी अदर फोन विद द एप्पल डिजाइन व्हिच इज देयर। वो 3 कैमरे लेके आया तो बहुत सी कंपनी ने उसके जैसे 3 कैमरे बनाने शुरू कर दिए। स्लो मोशन कैमरा सबसे पहले कौन लेके आया था? एप्पल वाज द ओनली वन। जो स्लो मोशन कैमरा हम यूज करते हैं, दैट इज ऑफर्ड बाय द एप्पल ओनली। आई थिंक इन एप्पल 7 या 8 में वो आया था फीचर, ठीक है। तो सारे आप देखेंगे इनोवेशंस वही लेके आता है, ठीक है। और क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ह्यूमन ब्रेन उसके पास है, दोज हु आर एबल टू गिव दिस काइंड ऑफ आउटपुट आफ्टर देयर हार्ड वर्क, ठीक है। कम टू नेक्स्ट। So what is HRM? This is the definition. Human. Human means people. या हम बोलेंगे कि any worker. और वर्कर कितने टाइप के होते हैं किसी कंपनी में? What are the different categories of worker in an organization? बताइए। वर्कफोर्स के टाइप होते हैं, सुने कुछ? वर्कफोर्स के टाइप्स नहीं पढ़े आपने? अकाउंट में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है? पढ़ी है? उसमें भी थी कॉस्ट शीट जब बनाई थी। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर सुनी थी, ऐसे टेम्परेरी, परमानेंट, ये भी सुने होंगे आपने। एंड वी हैव स्किल्ड वर्कफोर्स, अनस्किल्ड वर्कफोर्स, सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स, दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं पीपल की, तो इसमें सारे लोग आ जाते हैं, चाहे वो परमानेंट बेसिस पर कंपनी के एम्प्लॉइज हो, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पर हो, यानी हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, ठीक है। वो स्किल्ड वर्कफोर्स भी हो सकती है। स्किल्ड मींस जिसके पास कुछ स्किल सेट है विच दे हैव गेन बाय वे ऑफ देयर स्टडी एंड बेस्ड ऑन दैट दे हैव गॉट सम जॉब। तो जो जनरली हम बात करते हैं जो एम्प्लॉइज होते हैं वो स्किल्ड कैटेगरी में ही आते हैं, बिकॉज समटाइम्स दे आर MBA, BMS और BBA, BCom, these are the degrees eligibility to do a particular job. And semi skilled क्या होते हैं? यस, मतलब थोड़ा बहुत पता होता है उन्हें,
एलिजिबिलिटी के हिसाब से मान लो आपने देखा होगा कई जगह कि 10th इज ओनली द एलिजिबिलिटी, थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं उसके बाद उन्हें काम ही आगे करना है, दैट इज कॉल्ड सेमी स्किल्ड। और अनस्किल्ड क्या होते हैं? जिनका आपने देखा होगा जो लेबर का काम करते हैं, है ना, उनको चाहे वो 8वीं पास हो, 6वीं पास हो, 5वीं पास हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो ईंट उठा सकते हैं? ईंट उठाने वाले देखे होंगे ना आपने, दैट इज कॉल्ड लेबर। उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, है ना, या हम बोलेंगे एन अनस्किल्ड लेबर। तो जो भी आपने देखा होंगे जो इस तरह के काम करने वाले लोग होते हैं, जहां बोलेंगे आपने देखा होगा कारपेंटर्स होते हैं, उसने कुछ सीखा तो ही ना होता है, पर वो धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ही हैज लर्नड अ पर्टिकुलर स्किल, नाउ ही इज एबल टू वर्क। तो उसको आप स्किल्ड बोलेंगे अनस्किल्ड बोलेंगे? Yes, because he do not possess any degree for that particular specialization, but he knows that kind of work. Then it will come under the head of semi skill. ठीक है, मशीन पर हम कई बार लगा देते हैं, अच्छा ठीक है ये जो बिस्किट के पैकेट निकल रहे हैं इनको उठा के वहां लगाना है, दैट इज कॉल्ड अनस्किल्ड टाइप ऑफ जॉब विच यू आर सपोज टू डू। कोई दिमाग नहीं लगाना, बस पैकेट को उठा के यहां से वहां रखना है ना, लोडिंग अनलोडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम्स अंडर द हेड ऑफ अनस्किल्ड। डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट लेबर क्या होते हैं? You both of you may please sign the attendance sheet. आप पास कर दो ये वाली attendance sheet इधर, बाकी पांचों के साइन होगा इसके इस पर। यस, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है? फैक्ट्री वर्कर्स आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ऑपरेशन मैनेजर विच इज देयर इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है फैक्ट्री में? उसको बनाने वाले डायरेक्ट हो जाएंगे, कैसे इनडायरेक्ट कैसे हुए? व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट लेबर? तो आपने कहा वो बना रहे हैं वो इनडायरेक्ट हो जाएंगे, फिर कैसे हो गए इनडायरेक्ट? हाँ, तो जो बनाने वाला है वो इनडायरेक्ट होगा, बनाने वाला। आर यू श्योर? आप दोनों चीजें अलग अलग बोल रहे हो। हाँ, मैंने आपसे पूछ रहा था कि ऑपरेशन मैनेजर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, अभी आपने बोला कि जो फैक्ट्री में करने वाले डायरेक्ट हो गए, पक्का? नहीं, डायरेक्ट लेबर है इनडायरेक्ट लेबर है? इनडायरेक्ट क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, डायरेक्ट लेबर मींस दोज हु आर एक्चुअली डूइंग द प्रोडक्शन, जो अपने हाथ से प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं। और दोज हु आर फैसिलिटेटिंग द प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। गेटिंग माय पॉइंट? दोज हु आर डूइंग एक्चुअल प्रोडक्शन और एसोसिएटेड विद द एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। And those who are facilitating the production, that is called indirect labor. तो जो अभी मैनेजर है, क्या वो खुद से प्रोडक्शन कर रहा है? वो फैसिलिटेट कर रहा है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर कर रहा है, वो ये देख रहा है कि काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, मीन्स somehow he is related but not directly related, that's why it is called indirect labor. और डायरेक्ट क्या होगा? those who are involved in those production activities. ठीक है, अगर ईंट बन रही है तो ईंट बनने के लिए जो मिट्टी लेके आ रहा है, जो उसको तपा रहा है, वो सारे लोग डायरेक्ट लेबर में आएंगे, और जो सुपरवाइजर उनसे काम करा रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग कहां गए? आपके ह्यूमन फैक्टर विच इज एसोसिएटेड विद द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट वर्किंग फॉर द कंपनी, दोज ऑल कम्स अंडर द हेड ऑफ ह्यूमन। द सेकेंड इज रिसोर्स, एसेट्स एंड कॉस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन फैक्टर को एंगेज करने के लिए हम क्या करते हैं? वी नीड टू पे सम कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सैलरी और वेजेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सैलरी एंड वेजेस, व्हाट इज द डिफरेंस? एनी आइडिया? ये कोई वो थोड़ा चल रहा फोनो फ्रेंड की, आप उससे पूछ के बताओगे, आप अपने आप बताओ ना, पेपर में थे ना आपके बगल में बैठने वाला है वो।
सैलरी डायरेक्टली वर्कर को दी जाती है और वेजेस इनडायरेक्टली वर्कर को दी जाती है। वेजेस सैलरी इनडायरेक्ट वर्कर को दी जाती है और अच्छा ठीक है, मान लो कि एक जो लेबर है वो खुद से प्रोडक्शन कर रहा है और उसको कंपनी ने अपने एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो उसको वेजेस दी जाएगी या सैलरी दी जाएगी? वेजेस। कैसे, क्या डिफरेंस है? ये तो पूछा मैंने, सैलरी कब बोलोगे और वेजेस कब बोलोगे? किसको? क्यों वेजेस क्यों नहीं दी जाएगी उसे? डिफरेंस क्या है? मैं कह रहा हूं उस डायरेक्ट प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व है उसको कंपनी ने हायर किया हुआ है, वो सालों से काम कर रहा है, क्या देंगे उसे? हम्म हम्म ओके ठीक है, चलिए गुड, ये थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ। यानी व्हेन वी से द टर्म सैलरी इट मींस दैट पे आउट विल बी गिवन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब वो पीरियड ऑफ टाइम वंस इन ए वीक भी हो सकता है, वंस इन अ फोर्टनाइट भी हो सकता है, वंस इन अ मंथली हो सकता है। और जनरली जब हम देखते हैं तो ये कैसा होता है? मंथली बेसिस पर होता है ना? सैलरी आपने सुनी होगी, हर को मंथली मिलती है। व्हाट इज योर मंथली सैलरी, व्हाट इज योर एनुअल पैकेज? एंड व्हेन वी से द वेजेस इट मींस डेली वेजेस। वर्कर काम करता है, उसको एट द एंड ऑफ द डे यू विल प्रोवाइड सम रेम्युनरेशन, दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो अगर वो दैनिक बेसिस पर, डेली बेसिस पर आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेजेस। अगर एक टाइम पीरियड के बाद आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सैलरी। और सैलरी जनरली जो दी जाती है वो कंपनी के एम्प्लॉय को दी जाती है। सैलरी किसको दी जाती है? कंपनी के एम्प्लॉयज को दी जाती है। और जनरली आप देखेंगे, जो मैंने तो आपको एग्जांपल एक हाइपोथेटिकली दिया था, बट जो लेबर होती है वो कंपनी जनरली डेली बेसिस पर ही हायर करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाएंगे तो यू विल फाइंड वहां लंबी लंबी क्यू सुबह से लग जाती हैं, क्योंकि वहां नए जो लेबर है वो काम करने के लिए आते हैं। कंपनी को जितने लोग चाहिए वो गेट के अंदर उनको रजिस्टर में एंट्री करा के ले लेता है। एट द एंड ऑफ द डे दे विल प्रोवाइड द डेली वेजेस टू दैट वर्कर हु हैज वर्कड फॉर एंटायर डे फॉर द कंपनी। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी क्लियर है। सो दैट इज कॉस्ट ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, that human factor whomsoever you have engaged for attaining the objective of the company, whether they are direct or indirect, skilled, unskilled, semi-skilled, temporary, permanent, whatsoever, to them you need to pay a compensation in form of salary or wages, that is called cost, that is the cost for the organization to engage those human factor. Now the next one, management. तो यहां तो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल टू अचीव सेट गोल्स। व्हाट एल्स इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? ये तो इसके रेफरेंस में लिखा हुआ है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, बट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अब ये आंसर थोड़ी ना कोई किसी चीज को मैनेज करना मैनेजमेंट हो गया। हाउ यू विल डिफाइन इट? बहुत सिंपल सा वर्ड है, ऐसा लग रहा है कितना सिंपल सा वर्ड है। हाँ, डेफिनेशन शेयर किया आपने, है ना? लिख के ऐसे नहीं पेपर में। गुड गुड, ठीक है। और क्या होता है? ठीक है, उन्होंने अच्छा बताया। और मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी गेट द वर्क डन बाय अदर्स, ये हम करवाते हैं उसमें। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, वो लिखी नहीं किसी किताब में, बट यू कैन ऑल्सो राइट इट। द आंसर ऑफ 5W एंड 1H, है ना? दैट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। कैसे काम करना है, कौन करेगा, ये प्लानिंग भी आप जैसे बोलते हैं, प्लानिंग है ना, प्लानिंग। और उसको फिर आगे फॉरवर्ड, उसको आगे इंप्लीमेंट भी करना, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहां करेगा, क्या करेगा, ठीक है? इन सबके आंसर फाइंड आउट करना और उसको इंप्लीमेंट करना टाइमली, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो योर डेफिनेशन इज ऑल्सो राइट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी गेट द वर्क डन थ्रू अदर्स। तो हियर इन दिस रेफरेंस HRM, coordination and control to achieve set goals. So what we do, again the definition which she has said, it is here only in these words, that what we are doing, we are coordinating,
coordinating between different human factors which are engaged and hired by the organization for different purposes. What are the different purposes? Like we have production department, we have human resource department, we have marketing, sale, research and development, supply chain, packaging, labeling. So many departments are there, where across those departments we have different human factor. We need to coordinate them to achieve the end goal of the organization. What is the end goal of the organization? What is the end goal छोड़ देते हैं. What is the goal of an organization? क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल? दो ही होते हैं, ये मैंने पॉइंट दे दी. दो ही गोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, केवल तीसरा नहीं होता कोई भी. तो वो दो गोल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के? प्रॉफिट एंड ग्रोथ. ग्रोथ तो नहीं है, प्रॉफिट सही बताया. हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट? कंपनी की. और क्या? स्टेबिलिटी. ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना. बहुत सी कंपनी स्टेबिलिटी पे काम ही नहीं करती, पता है, वो हायर एंड फायर पे काम करती है. जब तक जो काम करेगा ठीक है, निकाल देंगे, अगला हायर कर लेंगे. हाँ यही है ना, पढ़ लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है ना. हाँ, टू गोल्स आर देयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. देयर इज नो थर्ड गोल. अगर आप तीसरा कोई भी बोलेंगे तो वो इन्हीं दो से रिलेटेड होगा. अगेन आई एम सेइंग दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. इनका मतलब समझ लीजिए ना, इंपॉर्टेंट है ये, आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ चुके नहीं अभी? पढ़ ली? अच्छा, आज यही पढ़ा है तो मतलब. हाँ गुड, फिर तो अच्छा है प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस एवरी कंपनी वांट टू हैव मोर एंड मोर प्रॉफिट इन द अपकमिंग ईयर्स. ये तो सभी को क्लियर है. और उसी के लिए कंपनी क्या करती है, या तो प्रोडक्ट बनाती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, या दोनों का कॉम्बिनेशन देती है. और उसके लिए ही सारे के सारे लोगों को हायर किया जाता है. उसी के लिए कंपनी कंपनसेशन देती है, उसी के लिए प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब उसी के लिए होता है. और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस कंपनी वुड आल्सो, क्या चाहती है कंपनी? कंपनी आल्सो वुड लाइक टू हैव देयर गुड इमेज इन द मार्केट. दे वुड लाइक टू एक्सपेंड देयर बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब ऑलवेज. कोई कंपनी जो अभी सपोज के दिल्ली से शुरू हुई है, वो चाहेगी कि मेरा बिजनेस फरीदाबाद भी जाए, नोएडा भी जाए, पूरे एनसीआर तक जाए. एनसीआर में जाने के बाद वो ईस्ट इंडिया भी जाए, नॉर्थ में भी जाए, वेस्ट साउथ सब जगह जाए, और उसके बाद कंट्री से बाहर भी जाना चाहिए. और इस वे में कंपनी क्या करेगी? दे विल अटेन और दे विल बी हैविंग मोर एंड मोर एसेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. और जो आपने भी बताया दैट इज वेरी राइट. और इसके बेसिस पर क्या होगा? कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना. तो दैट इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. कंपनी की अभी वैल्यू सपोज 1 करोड़ है, तो वो 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ कब होगी? जब उसके शेयर का प्राइस या उसकी मार्केट वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी. और वो कब बढ़ेगी? व्हेन दे आर सेलिंग more and more products in the market, when they have a large customer base, when they have large employee base also, good efficiency, good supply chain across the location wherever they are serving the market. So that is called wealth maximization. ठीक है. और क्या केवल शेयर से ग्रोथ होती है, शेयर से मार्केट वो होती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? नहीं. जो कंपनी नहीं है पब्लिक लिमिटेड, वो क्या करती हैं? वो अपनी एसेट्स को बिल्टअप करती रहती हैं. तो उनकी एसेट्स की वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब उनकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू होगी. ब्रांड वैल्यू एंड शेयर वैल्यू इज डिफरेंट, है ना. ब्रांड वैल्यू किसकी होती है? जिनके शेयर मार्केट में नहीं है. तो कंपनी की अगर कभी बोली लगेगी कि कितने की कंपनी है, तो 400 करोड़ का एम्पायर, ऐसे आपने नाम सुने होंगे, है ना, कि 400 करोड़ का एम्पायर है, कि 500 करोड़ का एम्पायर है. दैट इज कॉल्ड द ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी. हो सकता है कि उस कंपनी की एसेट उतनी ज्यादा महंगी ना हो, लेकिन क्योंकि कंपनी का नाम इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से उसको इतनी वैल्यू मिलेगी. जैसा सुना होगा ना, व्हाट्सएप को फेसबुक सॉरी एक उसको पैकेज दिया था कि इतने में वो खरीद ले, है ना. तो वो नहीं बिकना चाह रही थी, फिर उसको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े, तब जाके व्हाट्सएप एंगेज किया गया. या फेसबुक और इंस्टा, जैसे ये बात करते हैं, ये जो अभी एक कंपनी का नाम ले रहा हूं मैं, ये कैपजेमिनी. कैपजेमिनी इज आल्सो वन कंपनी हु हैज एक्वायर्ड वन कंपनी दैट इज आईगेट. और आईगेट की जितनी मार्केट वैल्यू थी, उसका 3 गुना उसने पे किया उसको एक्वायर करने के लिए, क्योंकि वो रेडी नहीं हो रहे थे अपने आप को बेचने के लिए. तो 3 गुना प्राइस देकर भी वो कंपनी को तब जाके खरीदा है, क्योंकि दे वर द मेन चैलेंजर फॉर द कंपनी. तो ये होती है उसकी ब्रांड वैल्यू. ठीक है, उसके शेयर नहीं थे, बट द ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट. उसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो एसेट थी, ये सपोज ये कमरा है, यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, तो कमरे की वैल्यू कितनी होगी? 50 लाख मान लें, जैसे था 1 करोड़ मान लें. लेकिन अगर कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो ये 10 करोड़ की भी बिक सकती है, 50 करोड़ की भी बिक सकती है.
That is the meaning of brand value. I hope it is clear to everyone. So that is coordination and control to achieve set goals. तो जब हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, देखिए जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है दैट इज इनडायरेक्ट गोल ऑफ ए कंपनी. डायरेक्ट गोल कंपनी का हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो मे बी 10% मोर सेल वी विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर ईयर, या 20% मोर सेल इन द अपकमिंग ईयर. दिस इज कॉल्ड द टारगेट. और उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द फंक्शंस एंड कंट्रोल. Control means whatsoever is the set target, are those people are able to achieve those target or not? That comparison, that observation is called control. Control में ये होता है ना कि one standard is there, then the people are doing the actual production, actual work, and at the end we compare कि जो standard था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ. नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो हम उसका फिर आंसर उन एम्प्लॉय से लेते हैं जो उस काम को नहीं कर पाते. That comes under the head of control. But humans, unlike other resources in the context of work and management, cause problem. You know, there are two words. One is problem, the another is complex problem. What is the difference between these two? When a problem becomes complex problem, problem तो problem होती है ना, बड़ी problem, छोटी problem, है ना. जब solution ना मिले तो वो खराब हो जाती है problem. ओके, जब उसके ओके मैनी फैक्टर्स हों जो रिलेट कर रहे हो, जो उस प्रॉब्लम को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है. और ओके यानी हम सोच रहे थे कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उससे सॉल्व ना होकर वो और खराब हो गई तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है. और कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं पता चल रहा. Any input from your side? आप क्यों नहीं आंसर दे रहे, क्या हो गया? ऐसा लग रहा है सारे आंसर उसे बता देते हो, वो बोल देता है. टीम में चल रहा है, टीम में. नो वन इज राइट. आप उसको बताती हो फिर वो बताती है, ऐसा है. फिर ना पता हो प्रॉब्लम का तो वो बड़ी हो जाती है. छोड़ दो उस प्रॉब्लम को, जान दो बाद में. नहीं, the only difference is problem और complex problem में whenever the human factors get involved the problem becomes complex. एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है. एग्जाम्पल मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था अभी. आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अमूल प्लांट और मदर डेयरी प्लांट. तो वहां प्रोडक्शन कैसे होता है? मैनुअली हो रहा है क्या? नो, देयर आर द ऑटोमेटेड प्लांट सेटअप. मिल्क को केवल इनपुट होना है, बाकी जो प्रोडक्ट आपको बनाने हैं वो मशीन के थ्रू पास ऑन होते चले जाते हैं, पैक्ड होते चले जाते हैं और वो पैकेट होके अपना बाहर आउटपुट आ जाता है. देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन. अब मशीन अगर कोई खराब होती है, ठीक है, मशीन कोई खराब हुई, आपने उसको ठीक किया, वो फिर से काम करना शुरू कर देगी. तो क्या मशीन कभी कोई बहाने दे सकती है कि आज मैं 1000 बोतल नहीं बनाऊंगी दूध की, मैं आज 900 ही बनाऊंगी? अगर वो मशीन ठीक है और वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है तो मान लेते हैं कि 1000 पर आर का उसका एवरेज है, तो क्या कभी मशीन इस तरह के बहाने दे सकती है? बट ह्यूमन दे सकता है. व्हाई? बिकॉज एवरी ह्यूमन हैव डिफरेंट ब्रेन्स. वो अंदर क्या सोच रहा है और उसके बाहर क्या वो बोल रहा है, both possibilities there that they are quite different. They are too much differ what he has inside or what he has outside. हो सकता है कि अभी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्लास कब खत्म होगी, और चेहरे से लग रहा है कि अरे वाह कितना अच्छा हम पढ़ रहे हैं. तो दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन. मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा हूं, डोंट माइंड, बट इट इज विद एवरीवन, है ना, कि हम दिख बहुत अच्छे सकते हैं लेकिन अंदर हम बहुत दुखी हैं. ये ह्यूमन ही कर सकता है ना, मशीन तो नहीं कर सकती. अगर आपने मशीन को बोल दिया भाई कि वो फुल कैपेसिटी पे काम करेगी तो वो उतनी ही आउटपुट देगी जितनी उसकी कैपेसिटी है, ना वो एक ज्यादा करेगी ना वो एक कम करेगी, क्योंकि वहां तो ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व ही नहीं है. प्रॉब्लम क्या है कि मशीन खराब हुई, उसको आपने रिपेयर किया, अगेन इट इज वर्किंग एज यूजुअल. बट इन केस ऑफ ह्यूमन इट इज नॉट पॉसिबल. इट मे बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इफ यू आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, एक जो वर्कर्स हैं आप उनकी सैलरी दी हुई है सपोज 10,000 पर मंथ. अब वो आगे स्ट्राइक के ऊपर कि नहीं हमारी सैलरी तो 20,000 होनी चाहिए, विच इज नॉट क्वाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल. यू आर ट्राइंग टू नेगोशिएट विद देम. चलिए 12,000 और 2,000 वी कैन डू द इंक्रीमेंट दिस ईयर, अगेन नेक्स्ट ईयर वी विल आल्सो डू द अनदर
इंक्रीमेंट ऑफ 2000, बट दे आर नॉट रेडी टू वर्क. वो अड़ गए, और स्ट्राइक पर कर दिया, लॉकआउट कर दिया, काम ही नहीं करने दे रहे हैं. व्हाट विल हैपन? द प्रोडक्शन विल नॉट टेक प्लेस. है ना, उनको पता है कि हाँ 2000 अभी बढ़ रहे हैं, तो दैट इज क्वाइट एविडेंट, क्वाइट एडुकेट एट दैट पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम पीरियड. 10 से 20 तो कोई नहीं कर सकता ना सीधे सैलरी. ठीक है, तो इन दैट केस द प्रॉब्लम विल बिकम मोर वल्नरेबल, मोर कॉम्प्लेक्स, एंड देयर इज नो सॉल्यूशन इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियोस. ठीक है, तो जो ह्यूमन फैक्टर है उसी से ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है. जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं. सपोज एक एक्सपेरिमेंट हमें करना है. हमने लिया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हमने एक कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट में हमने रखा, और उस पर जो हमने टेस्टिंग करनी थी उसके अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट लिए, तो वो आपके हमेशा कैलकुलेटेड ही आएंगे. बैक्टीरिया तो नहीं ये करेगा कि नहीं आज तो मैं सो रहा हूं, मैं काम ही नहीं करूंगा, नहीं मैं रिएक्शन ही नहीं दूंगा. क्या वो बैक्टीरिया कर सकता है? ऐसे नहीं कर सकता. तो ऑलवेज यू विल गेट व्हाट, आप जानते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके अपने मैनुअल होते हैं. मैनुअल के अकॉर्डिंग आप जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा, क्योंकि वहां पर ब्रेन्स इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन अगर मैं आपसे भी पूछूं कि क्या पूछें आपसे, सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन एचआर क्लासेस. ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने बनाए, 1 to 5 रेटिंग स्केल है. स्ट्रांगली एग्री 5, स्ट्रांगली डिसएग्री 1. 0 नहीं होता, 1 होता है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं टीचर हूं, अब मैं आपके पास सर्वे फॉर्म लेके आया. हाँ भाई आप आओ, बताओ क्या क्या टिक लगाओगे. यानी मैं ही सामने फिल करा रहा हूं, तो क्या करेगी बेचारी, इसको लग रहा है कि नहीं यार बन ही देना था मेरे को, तो अगर ये ऑनलाइन होता तो मैं बन ही देती. तो क्या ये दे पाएगी? नहीं देगी. भाई सर ही पूछ रहे हैं, नंबर तो इन्होंने देने हैं, पढ़ाना ही नहीं है, है ना, सब कुछ इन्होंने करना है. अब तो 5 ही देने पड़ेंगे, एक 4 भी नहीं दे सकती मैं तो. कैसा पढ़ाते हैं? 5. है ना, क्वेरी कैसे सॉल्व करते हैं? 5. नोट्स देते हैं? बिल्कुल नहीं दिए होंगे, फिर भी 5. ठीक है, तो दिस इज ह्यूमन ब्रेन. गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. और जब मैं सर्वे कर रहा हूं, अभी सर्वे का पर्पस क्या था? सिर्फ 6 लोगों की बात नहीं हो रही है. सपोज आपकी क्लास में 1 लाख स्टूडेंट है, टोटल बैच की हम बात कर लेते हैं, 1 लाख है. अब मैं उनसे सर्वे कराऊंगा और मुझे देखना है कि अच्छा क्या है फैकल्टी का सेटिस्फेक्शन लेवल. अगर मैं इस तरह से कराऊंगा तो वो 100% ही आएगा. लेकिन अगर ये मैंने ऑनलाइन कर दिया और ऑनलाइन में मुझे नाम चाहिए नहीं किसी का, तब पता चलेगा कि एक्चुअल क्या आता है. क्या तब एक्चुअल आ जाएगा? तब भी नहीं आएगा. तब कई सारे लोग क्या सोचेंगे, अरे ये सर्वे फॉर्म आया भरना है, चलो कुछ भी टिक मार दो. उनको पता ही नहीं क्या क्वेश्चन है, तो भी आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे. तो क्या ऐसे सर्वे के बाद जो हम एनालिसिस करेंगे और उसके रिजल्ट आएंगे, क्या वो ठीक आएंगे? कभी नहीं आ सकते. पता ही नहीं चल सकता कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल एग्जैक्ट था वो क्या था, वो आप कभी मेजर ही नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ सो मेनी फ्लॉज इन द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. कि आपने इतना पैसा खर्च किया. आप जानते हैं ना कि हमारे देश में सेंसस होता है, कितने लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं उसके ऊपर. सारे टीचर जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट के और टीचर्स हैं, सब लगा दिए जाते हैं. जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो भी लगा दिए जाते हैं, है ना, हर घर पे जाते हैं. लेकिन फिर भी डेटा ठीक आता है क्या? आपको लगता है ठीक आता है? कभी नहीं आ सकता, बिकॉज देयर आर सो मेनी फ्लॉज इन द प्रोसेस. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो आपको एक्चुअल चीज चाहिए थी आप उसके नियर बाई पहुंच पाते हो, एग्जैक्ट आप ले ही नहीं पाते हो, इवन आफ्टर स्पेंडिंग दिस मच ऑफ अमाउंट ऑन द सर्वे. ठीक है, बाय बिकॉज ह्यूमन फैक्टर इज वर्किंग. अगर ये ह्यूमन फैक्टर नहीं होता तो शायद रिजल्ट अच्छे आ जाते. तो गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट इज कॉल्ड, बट ह्यूमन, यहां आंसर यही लिखा हुआ था वैसे इसका जब मैंने पूछा था, है ना, ह्यूमन. तो अनलाइक अदर रिसोर्सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट कॉजेज प्रॉब्लम्स. तो ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. दैट्स व्हाई दिस सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट फंक्शन इज रिक्वायर्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद डे टू डे इश्यूज व्हिच आर पर्टिनेंट, which are created by those human factor. Sometimes they are created, sometimes they are occurring, है ना, naturally. So to deal with those kind of errors, those kind of problems, another department that is called human resource department is always mandatory in any kind of organization. अब in any kind का मतलब ये मत कहना कि एक आटा बनाने वाला है वो भी क्या एचआरएम को लेके बैठता है, नहीं, है ना, कंपनी की बात हो रही है ना. माइक्रो लेवल, स्मॉल लेवल, मीडियम एंटरप्राइजेस, या हम लार्ज एंटिटी की बात करते हैं, वहां पर ये फैक्टर्स काम करते हैं, वहां ये फंक्शन काम करते हैं, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो नंबर में ज्यादा होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चाहिए होता है. तो एनी क्वेश्चन सो फार रिलेटेड टू द डेफिनेशन? अब देख लीजिए, एक डेफिनेशन को हमने इतना ज्यादा हमने लेंथी डिस्कस किया है. अब ये मत करना कि वही लाइन लिखे आए फिर मैनेजमेंट वाली, एक लाइन काम हो गया, पूरा डेफिनेशन हो गई, है ना. तो हमें इलेबोरेशन भी चाहिए होगी. यू कैन यूज, and again when your exam will come again in the month of May, June, whatever it is, so always try to give example, है ना.
whatsoever question comes, always try to relate some example, and that's why I will always quote so many example with each and every topic. केवल definition पढ़ते रहेंगे तो समझ में नहीं आता है ना. Examples are also required, sometimes humorous example, sometimes serious example. ठीक है, both type of things will go on. Come to next. So this is the definition. अब जो हम definition form जैसे हम पढ़ते हैं ये उस form में definition है. You can go through with this. So this definition is also very large in itself. The process of attracting, developing and maintaining a talented and energetic workforce to support organizational mission, objective and strategies. You need not to write this definition. I will share. आपको मिल जाएंगी है ना. नहीं क्वेश्चन मुझे नोट्स दिए नहीं देते हैं नहीं देते हैं तो 5 मार्क कर देना. ठीक है, मैं सारे देता हूँ. ठीक है, I will give you each and everything, है ना. Whatsoever I have the written content, I will provide you. But yet, addition to this, if you would like to write something which I am saying only, है ना, which is not written on the slide, that you can write. That is your choice. ठीक है. So here now the process of attracting. अब देखिए ये definition में ना कई सारे parts में हम इसको कैसे पढ़ेंगे. The process of attracting a talented and energetic workforce. A process of developing talented and energetic workforce, the process of maintaining a talented and energetic workforce. ये तीनों के तीनों अपने आप में चैप्टर्स हैं. यहाँ तो बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे अश्वत्थापा जो मैंने नाम बताया ना, मैंने आपको एक बुक बताई है के अश्वत्थापा, दैट यू कैन रेफर. आई विल प्रोवाइड इट टू यू ऑल्सो. सॉफ्ट कॉपी आई विल शेयर विद यू थ्रू टीम्स, दैट यू विल गेट. ठीक है, तो when you will go through with these kind of things, you will find separate chapters are there on these concept. थोड़ा बात कम कर लो, सीख लो. अटेंडेंस हो चुकी है, वैसे बात ही करनी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, जबरदस्ती कोई नहीं है. ठीक है, फ्री हैंड. द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग अ टैलेंटेड एंड एनर्जेटिक वर्कफोर्स. व्हाट डज इट मीन कि हाउ वी कैन गेट मोर अट्रैक्शन ऑफ दोज काइंड ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वेरी मच स्किल्ड. You know very well those who are skilled. आप जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, वो कहां चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, उनको बहुत सी सैलरी मिल जाती है ना. तो इंडियन कंपनी उसको क्यों नहीं ले पाती हैं? रीजन बिकॉज दे मे नॉट ऑफर दोज पैकेजेस विच आर ऑफर्ड बाय द अमेरिकन कंपनीज. अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के हम इसरो से कंपेयर करें नासा को, तो क्या जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है जो देशभक्त नहीं है ना, जो हमारे यहाँ नेशनलिज्म वाले हैं केवल वही टिक पाते हैं, बाकी सब चले जाते हैं बाहर, या जिनके कुछ कंपल्सन होते हैं वही नहीं जाते, बाकी चले जाते हैं बाहर. ठीक है, तो इसरो क्यों नहीं उनको गेन कर पाता है, नासा क्यों उनको गेन कर लेता है, क्यों उनको अट्रैक्ट कर लेता है? सो दैट इज बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग ए टैलेंटेड एंड एनर्जेटिक वर्कफोर्स. जितनी ज्यादा टैलेंटेड और एनर्जेटिक पीपल आपके पास होंगे उतना ही सक्सेसफुल आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी. जितना ज्यादा हाई लेवल का ब्रेन आपके पास होगा उतनी ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एप्पल का, R&D is the strongest in compared to any other telecom company. That's why they are able to provide so many new features which are not provided by the other mobile phone companies. ठीक है, तो the process of attracting, then what you need to provide to the employee? You need to provide them attractive packages. You need to provide them attractive welfare schemes. You need to provide them more employee-centric policies. You need to provide them good quality of life. If all these things you can provide to the employee, then definitely they will get attracted towards your company. They will not shift any other company. और ये जो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड होते हैं, है ना, चाहे आप किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो TCS, विप्रो, है ना, और आपके ये पहले सत्यम भी हुआ करती थी, सुनी होगी आपने, है ना, चली गई बेचारी. यू नो द सत्यम इश्यू और नॉट? पढ़ा करो थोड़ा सा, है ना, ये बहुत अच्छे. डन, हाँ डन. शीट दे दी अटेंडेंस. एक ही चलेगा, हाँ एक कंबाइंड है दोनों का ना, 2 घंटे का है. तो यस, इंडियन कंपनीज की हम बात कर रहे थे. क्या चल रहा था टॉपिक, एक बार रिमाइंड कीजिए. हाँ, सत्यम की बात हम कर रहे थे. सत्यम में क्या हुआ था पता है? सत्यम वाज ए वेरी रिनोन्ड IT कंपनी इन इंडिया. तो क्या हुआ उसके साथ? एंड इट हैज ए वेरी सक्सेसफुल, वी कैन से द
फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट 30 to 40 years इन इंडिया। हाँ, महिंद्रा ने किया था, तो ऐसी नौबत क्यों आई कि उसको एक्वायर होना पड़ा, बिकना पड़ा? व्हाट वाज द रीजन? You know what was the Satyam share price at one moment? It was around 400 or 500 something. And at what price Mahindra has acquired? 27 rupees per share. तो क्या हुआ ऐसा उस कंपनी के साथ? उनके अकाउंट में फॉर्जरी थी, उनके जो अकाउंट थे वो मिसलीडेड थे, मिसरिप्रेजेंटेशन थी, जो चीज थी ही नहीं वहां उसको दिखाया हुआ था। तो इट इज ए वेरी बिग स्कैम इन द कंपनी, और उसकी वजह से पूरी कंपनी कोलैप्स हो गई। ऑल्दो दे वर ए वेरी गुड सॉफ्टवेयर ब्रांड इन द मार्केट, बट उसके बाद इतने सारे फॉर्जरी की वजह से, स्कैम की वजह से वो पूरी कंपनी को बिकना पड़ा, और उसका शेयर एक बार को 8 रुपए पर भी आ गया था। यानी 400 पर सोचो जिसने खरीदा होगा, 1000 शेयर खरीदे 400 रुपीज पर, कितने हो गए? 4 लाख रुपए हो गए ना। 400 into 1000 कितने रुपए रह गए उसके? 8 into 1000, 4 लाख उसके 8000 बन गए। और जब तो 8 से भी आज अगर आप उसको देखेंगे महिंद्रा, क्योंकि वो महिंद्रा के ने एक्वायर कर लिया है, अगेन द शेयर्स आर अराउंड 500 600 ओनली। तो जिसने 8 रुपए पे लिया 8000, आज की डेट में 5 लाख 6 लाख। ठीक है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फॉर्जरी, दैट अकाउंट रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग अकाउंट्स वर देयर, ह्यूज स्कैम, बिकॉज उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया था। ठीक है, काफी लंबे टाइम तक बैन रहा। उसके बाद जब वो हटा तो कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं थे, कंपनी के पास काम करने को कुछ भी नहीं था, इमेज पूरी तरह से डाउन थी। इन दैट सिनेरियो दिस वाज एक्वायर्ड बाय द महिंद्रा, और महिंद्रा के पास जब आया, क्योंकि नाम जुड़ गया महिंद्रा, उसके शेयर फिर रॉकेट बन गए नाम जुड़ते ही, क्योंकि महिंद्रा इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड इन द मार्केट। ठीक है, सो हियर अट्रैक्ट हम कैसे कर पाएंगे स्किल्ड वर्कफोर्स को? तो मैंने कई सारे आपको एग्जांपल दिए उसके। गुड सैलरी पैकेजेस यू कैन प्रोवाइड देम, यू कैन प्रोवाइड देम गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होती है? जैसे सपोज कि ये अभी किसी कंपनी में जा रहे हैं जॉब करने, है ना, और ये काम कर रहे हैं किसमें? अमन आईटी सॉफ्टवेयर लिमिटेड। और अमन आईटी सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो है वो इतने बड़े कमरे में चलती है, और उसका कोई बड़ा और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अब उसके साथ की जो फ्रेंड है वो काम करती है माइक्रोसॉफ्ट में, किसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी? अमन आईटी इंडस्ट्री वाले की या माइक्रोसॉफ्ट वाले की? है ना। तो एक तो होता है ब्रांड नेम की, आप किस ब्रांड नेम के साथ जोड़ना चाहते हैं, है ना, तो वो ब्रांड नेम आपको बनना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपकी नीड भी कौन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। आपने पढ़ी होगी ना मैस्लो हायरार्की, सभी ने पढ़ी है? क्या है बताओ, इन्हें बताना इन्हें। हाँ, कुछ याद नहीं आ रहा एक भी? ओके, ये तो उसके वो फैक्टर है ना, अगली नीड के। एनीवन? दो आपने ठीक बताए, बाकी देखो बीच बीच में मैं ना एक चीज और मैं बता दूं, आप कहोगे कि ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, हम ना बीच बीच में फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे, है ना। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा रिनोन्ड है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। जब भी आप आगे जाएंगे ये आपके सामने आएंगे ये चीजें, इसीलिए इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, जब भी आते हैं। हाँ बताओ। सोशल नीड्स, ओके, वो हो गया। फिजियोलॉजिकल सेफ्टी आपने बताया, सोशल और एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 5 नीड होती हैं। पहली को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड, सेकंड कौन सी हो गई? सेफ्टी, थर्ड सोशल, फोर्थ एस्टीम, और 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेसिक क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, सबको पता है ना। कोई भी इंसान जब सैलरी कमाता है, सपोज आपका कोई नहीं है, आप अनाथ हैं, बिल्कुल बेसहारा है, आपकी नहीं कह रहा हूं, कोई भी एक पर्सन है ना, XYZ मान लेते हैं, वो काम करना शुरू करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले उसे क्या चाहिए? आप देखते हैं भिखारी भी कोई होता है, सबसे पहले उसे क्या चाहिए? कि तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और उसके पहले उसे पानी चाहिए और खाना चाहिए, है ना। तो दीज आर द बेसिक नीड। और जब उसके पास ये चीज आती है, सपोज वो कहीं वर्किंग हो जाता है, तो वो थोड़ा अच्छा खाएगा, थोड़े अच्छे कपड़े पहनेगा, उसके बाद किस तरफ जाएगा? मान लो उसे थोड़ी कमाई होने लगी तो वो ये भी सोचेगा कि मुझे रहने को घर मिल जाए। दीज आर द बेसिक नीड। अगर आपको सोसाइटी में रहना है तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट विच यू शुड हैव टू सर्वाइव, और इनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं इन ए सोसाइटी। ठीक है, सेकंड आते हैं हम सेफ्टी नीड। ये क्या होती है? रहने को तो आप सड़क किनारे भी रह सकते हैं, रहने की बात हो रही है ना,
तो पेड़ के नीचे जैसे आदिवासी रहा करते थे, हम भी तो रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं? सेफ्टी नहीं है, फिर उसकी किसी की गाड़ी आएगी वो उड़ा के चली जाएगी, जैसे एक एक्टर की आई थी एक टाइम पे, केस चलता रहा, केस चलता रहा, है ना? तो ये भी पॉसिबिलिटी है, तो सेफ्टी नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? कम से कम एक घर हो जिसमें दीवारें हो, कुछ तो सेफ्टी होगी, है ना? दैट इज कॉल्ड सेफ्टी नीड्स। और फिर आप आजकल आप देखेंगे क्या होता है कि आजकल लोग इंडिपेंडेंट हाउस की जगह कहाँ रहना चाहते हैं? इंडिपेंडेंट हाउस में तो रहना चाहते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे ही किसी मोहल्ले में नहीं रहना चाहते। दे वांट कि कोई एक वेल एस्टेब्लिश सोसाइटी हो, गेटेड कॉलोनी हो, गेटेड सोसाइटी हो, जिसमें वॉचमैन भी बैठे हो, सीसीटीवी भी लगा हो, रजिस्टर में एंट्री होती हो, ये भी सेफ्टी नीड का पार्ट है। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उतना पैसा आपका फिर बढ़ता चला जाता है, टू एक्वायर दोज नीड्स, टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। नेक्स्ट आते हैं हम ये सोशल नीड्स। ये क्या होती हैं? हमारे फ्रेंड्स, अभी आपने जो बताया था, है ना, फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, है ना, जिनसे हम रिलेट रहे, हमारा एक रिलेशन बने, ठीक है? यस, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट इज एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मीन कि सोसाइटी में हमारी क्या रेपुटेशन अगर सपोज कि आपके घर के राइट साइड भी एक घर है और लेफ्ट साइड भी एक घर है ना, एक के पास BMW, एक के पास मर्सिडीज, तो क्या आप मारुति खरीदेंगे? आप सोचेंगे अब खरीदूंगा नहीं जब तक मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे, क्योंकि भाई वो नीड सेटिस्फाई नहीं होगी ना आपकी, ठीक है? तो दैट इज द पार्ट ऑफ एस्टीम नीड, कि हम प्रेस्टिजियस बनना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी में क्या वैल्यू दिखती है वो भी हम गेन करना चाहते हैं, हमें ऑनर मिले, हमें रेस्पेक्ट मिले। जब ये चीजें आपके मन में आती हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ योर एस्टीम। तो एवरीवन वुड लाइक टू सेटिस्फाई दीज नीड्स आल्सो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड द लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल, which is we can say the goal of your life. when you are able to achieve it, that is called self actualization. अब हर एक की लाइफ का गोल अलग अलग होता है, अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो यू कांट कमेंट ऑन एनी अदर और ईच अदर्स गोल, दैट इज देयर गोल, इफ दे आर एबल टू अचीव इट, कि हाँ मुझे एट द लाइफ लॉन्ग मुझे यहाँ पहुंचना था, जब आप वहां पहुंच जाएंगे देन योर नीड इज सेटिस्फाइड। और वैसे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल होता है वो कभी आ ही नहीं पाता। जैसे हम बचपन में बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना, मैं सीए बनूंगा, या मैं लॉयर बनूंगा, या पायलट बनूंगा, जब आप वो बन जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना था, वो आपका एंड गोल नहीं है, वहां आप रुक नहीं जाओगे, फिर आप आगे और जाना चाहोगे, बिकॉज देन यू विल कम टू नो कि व्हाट आर द स्टेप्स अहेड, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, और फिर डेस्टिनेशन पहुंचोगे, डेस्टिनेशन और आगे खिसक जाएगी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगेन नेवर नो, एक्स इज देयर, है ना, कि कहां कोई रुकेगा, यू डोंट नो। तो अट्रैक्टिंग, है ना, बेस्ट वेलफेयर स्कीम्स, बेस्ट पैकेजेस, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेस्ट ब्रांड नेम, इफ इट इज देयर देन यू आर एबल टू अट्रैक्ट द गुड क्वालिटी वर्कफोर्स, एनर्जेटिक वर्कफोर्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज नॉट। सेकंड इज डेवलपिंग। कैसे डेवलप करते हैं? कंपनी रन्स सो मेनी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, कंपनी रन्स सो मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बिल्ड अप द कैपेसिटी ऑफ देयर एम्प्लॉइज। सपोज यू आर डूइंग इफ you got your job in a HR department, but you also would, but your intention or your wish is to work with production department. In that case, suppose a company may launch some training program or some development program related to the production conceptual clarity, या कुछ इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट करती है, तो भी आप विलिंगली वहां ज्वाइन करके अपनी उस कैपेसिटी को भी बिल्डअप कर सकते हो, because you never know in future if you are getting some vacancies in the production department, you apply there, you have the knowledge, you will get selection over there, ठीक है? that is called development. तो डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कई तरह के होते हैं, ट्रेनिंग्स भी कई तरह की होती हैं, वो हम सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, है ना, वो आपके सारे सिलेबस में ही। द नेक्स्ट इज मेंटेनिंग ए टैलेंटेड पूल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय। तो जो छोटी कंपनी होती है वहां पर जो लोग होते हैं वो बहुत कम टाइम के लिए काम करते हैं। जैसे उनको क्यों काम करते हैं छोटी कंपनीज में लोग? एक्सपीरियंस के लिए। सपोज अभी आप फ्रेशर है, किसी भी कंपनी में जाएंगे, आप क्या कोशिश करेंगे? भाई पहले काम मिल जाए, हो सकता है फ्री में भी काम करेंगे, एज एन इंटर्न भी काम करेंगे, हो सकता है 5,000 रुपए भी काम करेंगे, 10,000 रुपए भी काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस जब आपके पास आएगा तो कहीं किसी अच्छी कंपनी में आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? तो जो छोटी कंपनीज होती है वहां क्या होता है कि लोग आते हैं, कुछ टाइम काम करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि जब उनका जो मोटिव है वो पूरा हो जाता है, दे विल मूव टू द अनदर कंपनी। और वो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि छोटी कंपनी उनको वो चीज नहीं दे पाती है जिसके लिए वो वहां पर आए थे। किसके लिए आए थे? कि बेटर पैकेज हो, हर कोई चाहता है ना अच्छा पैकेज हो, है ना? आप इंटर्न ही बने हुए हैं, कब तक इंटर्न बने रहेंगे? 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1 साल से ज्यादा कोई इंटर्न नहीं बनना चाहता। भाई अब तो कम से कम एम्प्लॉय हो जाऊं मैं,
ठीक है, जब वो फैक्ट्री कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है और तो फिर आप आगे जाएंगे ही जाएंगे, आपकी सैलरी भी इंक्रीज नहीं हो रही है, आप आगे जाएंगे ही जाएंगे, कब तक फ्री में काम करेंगे भाई? मेट्रो से भी जाओगे तो रोज के 100 रुपए तो खर्च होंगे, ठीक है, मान लो 50 रुपए टिकट है ना, और महीने के कितने हो गए? 3-4 हजार, फिर खाओगे भी कुछ, खर्चे ही आपका 8-10 हजार का हो गया, कब तक आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट करोगे? देन यू विल मूव टू द अनदर कंपनी। तो रिटेंशन, और जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहां जो लोग काम करते हैं वो सालों साल काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू द नेम ऑफ टाटा, टाटा में यू विल फाइंड सो मेनी एम्प्लॉइज आर देयर, दोज हु आर द फर्स्ट जॉब इज टाटा एंड द लास्ट जॉब इज टाटा ओनली, they work over there and they are getting retired from the same company because well standard are there, well established standards are there, good policies are there for the employees. That's why people do not want to move anywhere else. उनको टाइमली जब इंक्रीमेंट चाहिए वो होना ड्यू होता है, उनका इंक्रीमेंट हो जाता है, जब उनकी पोजीशन इंक्रीज होनी चाहिए, टारगेट अगर आप अचीव करते हैं उनकी पोजीशन इंप्रूव हो जाती है। इन दैट बेसिस यू विल फाइंड मेजॉरिटी पीपल वर्क विद द टाटा ओनली, नॉट ओनली टाटा, यू विल फाइंड मेनी अदर कंपनीज, है ना, जैसे हमने अभी नाम लिया था टीसीएस का, या हमने नाम ले लेते हैं इसका, कोई भी कंपनी ले लीजिए, गूगल, सब ये क्या नाम है, फेसबुक, ये सारी कंपनी का आप नाम ले सकते हैं, ठीक है, वेल रेनोन्ड कंपनी इन द मार्केट, नो वन वुड लाइक टू लीव देम, हार्डली दे आर लीविंग देम, ठीक है, अदरवाइज यू विल फाइंड मेजॉरिटी वर्क्स ओवर देयर फॉर 20 years, for 10 years, for 30 years, they are working over there, they are getting retirement from the same company. Fine, so that is maintaining a talented workforce, that is called employee retention, ठीक है, to support organizational mission, objectives and strategies. तो इनका काम क्या होता है? To facilitate or to help the organization in achieving their missions, objectives और strategies. अच्छा एक चीज तो बताइए, एक ये होता है आपने सुना होगा वर्ड जैसे स्ट्रेटेजी का लिखा हुआ है, तो स्ट्रेटेजिक गोल और एक होते हैं टैक्टिकल गोल्स, सुना है वर्ड टैक्टिकल, TACTICAL, टैक्टिकल, क्या है डिफरेंस? डिसीजन होते हैं कई बार, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, टैक्टिकल डिसीजंस, व्हाट डज इट मीन? सिंपल मीनिंग इज स्ट्रेटेजी मीन्स लॉन्ग रन एंड टैक्टिकल मीन्स शॉर्ट टर्म, है ना। व्हेन वी से टैक्टिकल डिसीजन इट मीन्स डिसीजन विच विल रिमेन इफेक्टिव फॉर पीरियड लेस देन 1 year, या शॉर्ट टर्म 10 दिन के लिए इफेक्टिव है, 15 दिन के लिए इफेक्टिव है, कोई डिसीजन आपने अर्जेंसी में लिया, दैट इज कॉल्ड टैक्टिकल डिसीजन। और जब आप बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन, इट मींस इट विल रन फॉर नंबर ऑफ इयर्स। आपने अपने एम्प्लॉय का 5% एचआरए बढ़ा दिया, है ना, अब वो सारे एम्प्लॉय का बढ़ाया है आपने, अब वो सालों साल रहेगा जब तक आप नेक्स्ट नहीं बढ़ाते, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ठीक है। कम टू नेक्स्ट, तो दिस इज द स्कोप और वी कैन से द बाउंड्रीज ऑफ एचआरएम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द चैप्टराइजेशन ऑफ एचआरएम, कि एचआरएम में ये सारी चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं एचआरएम में, पढ़ लीजिए एक बार, यही हम आगे भी पढ़ रहे होंगे, व्हेन यू विल सी दैट इन द अपकमिंग चैप्टर्स दीज थिंग्स वी विल बी एलैबोरेटिंग इन मच मोर डिटेल। तो हियर ओनली कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन वी विल डिस्कस इन अ वेरी कंसाइज मैनर। तो फर्स्ट टू आर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस? सबसे कॉमन क्वेश्चन है एचआरएम का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एक्सप्लेन। तो व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों सेम है ना? यस एग्जैक्टली, दिस इज द मीनिंग। अगर हम मीनिंग वाइज बात करें तो यही होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मींस होता है कि जो एचआर, जो रिक्रूटमेंट एचआर होते हैं, है ना, रिक्रूटमेंट में जो एचआर लगे हुए हैं, उनका काम क्या है कि कंपनी ने सपोज 10 वैकेंसी निकाली, उन 10 वैकेंसी पर कितने मैक्सिमम एप्लीकेशन वो ला सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर दोस 10 वैकेंसीज इज द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना। तो कंपनी क्या करती है, रिक्रूटमेंट की टीम अलग होती है और सिलेक्शन की टीम अलग होती है। रिक्रूटमेंट की टीम क्या करती है, जो आपने देखा होगा ना इंस्टाग्राम पे कई सारी जॉब आती है, सबके इंस्टाग्राम अकाउंट बने, सॉरी लिंक्डइन, लिंक्डइन सबके अकाउंट बने हुए हैं, इंस्टाग्राम सबके बने हुए हैं, इंस्टाग्राम सबके होंगे, लिंक्डइन किसी का नहीं होगा, बना लो, है नहीं, कुछ का नहीं भी है, इधर से बताया ना। तो लिंक्डइन भी बना लीजिए, आपको अगर पार्ट टाइम जॉब करनी हो, है ना, तो बहुत सारे उस पर ऑफर आते रहते हैं, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो वो इंफॉर्मेशन कौन शेयर करता है? दैट इज शेयर्ड बाय द रिक्रूटमेंट टीम। ध्यान रखना, क्या हो गया, दिस इज शेयर्ड बाय द रिक्रूटमेंट टीम ओनली, because this is a target for recruitment team that how much
more number of candidate you can attract for applying those vacancies which are there in the organization. तो एक तो लिंक्डइन एक अलग चीज है, उस पर होता है, उसके अलावा यू विल सी सो मेनी एडवर्टाइजमेंट कम्स. जैसे इंडियन रेलवे का अगर जॉब आ रही है तो यू विल फाइंड कि जो एक न्यूज़पेपर आता है, आपने सुना होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज करके. अब तो इंटरनेट आ गया, सब चीज आपको ऑनलाइन मिल जाती है. जब ये इंटरनेट नहीं था तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जिसको हम बोलते थे रोजगार समाचार, एक पेपर आता था जिसमें सारे गवर्नमेंट जॉब होते थे, उनकी पूरी डिटेल होती थी एडवर्टाइजमेंट कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, SC ST OBC जनरल कितने कितने हैं, कितने चाहिए होंगे, लोकेशन क्या, सारी डिटेल उसमें आती थी. ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट. नाउ वेयर दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कम्स, यू विल फाइंड ऑन फेसबुक पेजेस, यू विल फाइंड ऑन इंस्टाग्राम, है ना, पेजेस. और उसके अलावा यू विल गो टू दोस पेजेस वेयर यू फाइंड गवर्नमेंट जॉब्स, है ना, उनके भी कई सारे आजकल पेज बने होते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, वो तो मेन उनका है, जहां पर ऑफिशियली दे अनाउंस कि दिस मच ऑफ जॉब्स आर देयर फॉर विच यू कैन अप्लाई. ठीक है. तो देयर आर सो मेनी पोर्टल्स थ्रू विच दोज कंपनी हु वुड लाइक टू हायर दे कम्युनिकेट विद द पीपल सो दैट दे कैन गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर दोज जॉब्स. So that is a task of recruitment team. Now what is the task of selection team? When you will get suppose 10 vacancies थी आपके पास, for that you got 100 application. अब उन 100 को क्या करना है, आपको स्क्रीनिंग करनी है. हो सकता है कि आपने जो जिस बेसिस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सपोज आपने डिसाइड किया था, 5 साल का प्रोडक्शन मैनेजर का एग्जांपल हम मान लेते हैं, एक वैकेंसी आई है प्रोडक्शन मैनेजर की, 5 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक चाहिए, और क्या होना चाहिए उसके पास, सब मान लेते हैं कि एक्सेल एफिशिएंट होना चाहिए, एक्सेल आनी चाहिए उसे, ये मान लेते हैं. 3 चीजें मान लें, 5 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक होना चाहिए, और एक्सेल उसे आनी चाहिए. तो आप स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, जब व्हेन यू विल फाइंड दोस एप्लीकेशंस कि आपको पता चला कि बीटेक वो है ही नहीं, MBA किया हुआ है, बीटेक उसने कहीं नहीं की, तो ऐसे एप्लीकेशन को क्या करना है, हमें रिजेक्ट करना है. उसको तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. देन वन इज देयर जिसको एक्सेल आता ही नहीं, उसने लिखा ही नहीं कहीं भी, आपने पूछा था एक्सेल, वहां पर उसने क्रॉस किया हुआ है, देन अगेन इट विल गेट रिजेक्टेड. 5 ईयर की जगह 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, 4.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 का एक्सपीरियंस है लेकिन किसी और डोमेन में, आपने प्रोडक्शन में मांगा था, देन अगेन इट विल गेट रिजेक्टेड. ये सारे काम किसके हैं, सिलेक्शन HR टीम के, टू स्क्रीन दोज एप्लीकेशन हु आर रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट. नाउ आफ्टर दिस स्क्रीनिंग प्रोसेस you come to know that there are only 70 applications those who are eligible. Now you will call them for the further rounds of selection. अब वो क्या हो सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है. अब आपने उन 70 को क्या किया, कॉल किया 1 to 1, 1 by 1. हो सकता है कि उनमें से भी कुछ लोग डिसएग्री कर जाए बेस्ड ऑन सम गिवन कंडीशन कि ऐसे ऐसे काम करना होगा, ये ब्रॉड बेसिस पे काम करना होगा. मे बी यू आर गेटिंग सम मोर पीपल आउट फ्रॉम योर एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. तो सपोज 70 से रह गए 60. नाउ यू विल कॉल देम फॉर द इंटरव्यूज. टेक्निकल राउंड्स होंगे या आपके कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकते हैं जो विच यू वांट टू कंडक्ट. आपने पहले टेस्ट लिया, टेस्ट में क्या होगा, अगेन फिल्ट्रेशन इज देयर. ये क्यों इतनी सारी चीजें होती हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है ना, कितने सारे लोग हैं. अब उनमें से आपको क्या चाहिए, आपको आपका पर्पस क्या है इतने सारे स्क्रीनिंग प्रोसेस का, टू गेट द बेस्ट वर्कफोर्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. बेस्ट वर्कफोर्स, उस बेस्ट वर्कफोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सारे ये स्क्रीनिंग प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो आपने फिर वो टेस्ट लिया, टेस्ट में जो लोग पास हुए वो आगे जाएंगे, जो नहीं हुए वो गुड बाय. ठीक है. सपोज 60 के में से 30 रह गए, अब 30 का आप लोग इंटरव्यू लेंगे. अदरवाइज क्या होता, 100 का इंटरव्यू ले रहे होते आप, कितना काम पड़ जाता. जो इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ है जिसकी सैलरी कहीं ज्यादा है, वो लोग कितना टाइम अपना डिवोट करते हैं इंटरव्यू के लिए. तो आपने उनके टाइम की सेविंग भी कर ली और आपने जो अननेसेसरी एप्लीकेशन थी उनको आउट भी कर दिया, है ना. तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. तो 30 जब आपके पास बचे, नाउ यू आर कंडक्टिंग देयर इंटरव्यूज, देन यू मे हैव 1 टेक्निकल राउंड, 1 अनदर HR राउंड, देन यू आर एबल टू फाइनलाइज द कैंडिडेट फॉर दोज 10 वैकेंसीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन. द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज टू get the best workforce, best skilled workforce for your organization. That comes under the head of selection. तो recruitment is the first stage, selection is the second stage. है ना. रिक्रूटमेंट में हम किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम केवल नंबर ऑफ कैंडिडेट को इंक्रीज कर रहे हैं कि हाँ एज पर द गिवन कंडीशन दीज आर द नंबर ऑफ एप्लीकेशन. इट इज द टास्क ऑफ रिक्रूटमेंट टीम. सिलेक्शन टीम विल फाइनलाइज those 10 people who are suitable for 10 jobs of production manager in the company.
द नेक्स्ट इज इंडक्शन ओरिएंटेशन। ये क्या होता है? अब देखिए सब लिखा हुआ है, इंडक्शन भी है यहाँ पर, ट्रेनिंग भी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी है। क्या अंतर है इनमें, बताइए। इंडक्शन, पहले इंडक्शन की बात करते हैं। व्हाट डज इट मीन? इंट्रोड्यूसिंग द कैंडिडेट टू अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है, यही होता है। यानी आप भी जानते हैं कि जैसे सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, है ना, तो वहां क्या होता है, सबसे पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन में क्या होता है, आपको बताया जाता है कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसे काम करता है, एग्जामिनेशन प्रोसेस काम कैसे करता है। वीसी सर भी हो सकता है इंटरेक्ट करने के लिए आए बच्चों से, जो डीन हेड है वो भी आपसे इंटरेक्ट करने के लिए आए, वो आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे कैसे कैसे चीजें होती है। दैट इज कॉल्ड टू मेक द एम्प्लॉई और टू कैंडिडेट फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। अब ऑर्गेनाइजेशन में तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जो उनसे उनको फेमिलियर कराएंगे कि वो डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, so that employee should have the some knowledge about the functioning of the organization. ठीक है, that is comes under the head of induction. So whenever you have the new recruits, new selected candidate, it is always conducted for those candidates. Now next is training and professional development. अब ये सबके लिए अलग अलग होगा। सपोज आपने मेगा वैकेंसी निकाली थी अपने यहाँ, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग लोगों के लिए, सपोज आपने 100 वैकेंसी निकाली थी, है ना, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग पोजीशन पर 100 वैकेंसी। लेकिन ट्रेनिंग, ये तो इंडक्शन सबका सेम होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डिफर फॉर ईच डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जॉब। मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग की ट्रेनिंग उसको दी जाएगी, एचआर का है तो एचआर की ट्रेनिंग दी जाएगी, और आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है तो उसकी ट्रेनिंग उसको दी जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स विल बी कंडक्टेड फॉर दोज न्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स so that they can become familiar with the working environment of their departments, और कैसे उनको काम करना है, क्या उनका एग्जैक्ट काम होगा, उनको वहां पर वही सिखाया जाता है। The next is professional development. What does it mean? It is for existing employees. Those who are existing employees, they would like to get some higher position in the companies. तो वो क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या कंपनी उनको सेलेक्ट करके एक डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है जिसमें उनको अगले आने वाले पोजीशन के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये आप कह सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग इज फॉर न्यूली सेलेक्टेड कैंडिडेट, ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोज हु आर टॉप परफॉर्मर, they will go for these kind of development programs. The next is performance appraisal and management. This is again increment in terms of salary, increment in terms of your position, है ना, that comes under the head of performance appraisal and management. The next is career development. तो आप जानते हैं कि हर कंपनी में करियर पाथ होता है। जो अच्छी कंपनी होती हैं वो हमेशा इंडक्शन के टाइम पर अपने एम्प्लॉय से शेयर भी करती है कि अगर आप सपोज आज एग्जीक्यूटिव हैं तो सीईओ लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन से लेटर पार करने होंगे, आपके क्या क्या टारगेट होंगे, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस की जाती है। व्हाई इट इज डिस्कस्ड, सो दैट देयर शुड बी क्लैरिटी इन द माइंडसेट ऑफ द एम्प्लॉय कि अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, क्वालिटी कितनी देनी पड़ेगी, हर लेवल पर अलग अलग आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग पूरा चार्ट आपसे डिस्कस किया जाता है, एंड इट इज वेरी मच क्लियर। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। No scope for biasness. If these kind of things are there, employee remain more motivated कि अगर मैं इतना करूंगा तो मुझे पक्का ये पोजीशन मिल ही जाएगी, और एम्प्लॉय फिर उसी हिसाब से अपना काम ऑप्टिमम लेवल पर, मैक्सिमम लेवल पर भी करता है। द नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जो भी हमने बात की थी, वर्क लाइफ बैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल, कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके साथ साथ हम पर्सनल लाइफ को भी टाइम दे पाए, उसको भी उतना टाइम दे पाए जितना हम प्रोफेशनल लाइफ को देते हैं। तो फॉर दैट पर्पज अगेन एचआर टीम वर्क्स कि कैसे हम जो एक एम्प्लॉय है अगर वो स्ट्रेस्ड आउट है तो उसको कैसे हम उससे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या हम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सो दैट ही कैन मेंटेन गुड वर्क लाइफ बैलेंस। आप जानते हैं आजकल एक कॉन्सेप्ट होता है एलटीसी का, लीव ट्रेवलिंग कंपनसेशन, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को लीव ट्रेवलिंग के लिए भी अलाउंस देती है और उसके लिए छुट्टियां भी देती है। ये क्यों किया गया, कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाए। अगर वो कंपनी के लिए काम कर रहा है तो फैमिली के लिए भी उसके पास इनफ टाइम हो जिससे वो कहीं घूम कर आए और उसका माइंड फ्रेश हो, एंड देन ही कम बैक टू वर्क, ही विल फील मोर मोटिवेटेड, मोर एनर्जेटिक टू वर्क मोर इन द ऑर्गेनाइजेशंस। आप जानते हैं कई जगह भी क्या किया गया है, यू विल फाइंड इन द यूएस आल्सो, इन यूके, कि वहां आप 4 डे शिफ्ट की गई है। सुना है आपने ये चीज? क्यों? क्योंकि अगेन एम्प्लॉय के लिए चैलेंज क्या है कि अगर वो अपने लिए
कंपनी के लिए काम कर रहा है तो वो अपनी फैमिली के लिए कितना टाइम दे पा रहा है? अगर वो नहीं दे पा रहा है तो क्या हो रहा है? फैमिली की तरफ से स्ट्रेस आ रहा है, और जब स्ट्रेस उसका फैमिली की तरफ से आता है तो क्या होता है? इट इज ऑल्सो इफेक्टिंग देयर प्रोडक्टिविटी। अगेन द रिसर्च वाज कंडक्टेड, दे फाउंड कि अगर वो 4 दिन भी काम कर रहा है तो वो उतना ही काम कर रहा है जितना 5 दिन में कर रहा था। तो दिस इज द क्वांटम ऑफ स्ट्रेस because he was not able to maintain their personal life, and it is depicting in terms of his performance in the companies कि 5 दिन काम कर पा रहा है वो, और जब 4 दिन का दिया गया तब भी उतना ही काम कर रहा है जितना 5 दिन में कर रहा था। तो so many companies have already adopted this kind of concept कि वो 4 दिन ही आजकल काम करा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल उसका देता हूँ, मेरा एक ओमान में फ्रेंड है, ओमान में एक कंट्री है, तो वहां उसका जो वो भी टीचर है ना, फैकल्टी है, तो उसका 4.5 डे वर्किंग होता है, बाकी 2.5 डे ऑफ रहता है, सॉरी 3.5 डे वर्किंग, 3.5 डे ऑफ, 7 दिन में से उसको 2 महीने की टू एंड फ्रो टिकट्स मिलती हैं इंडिया आने के लिए, 2 महीने की लीव मिलती है जो समर वेकेशन होती है, तो जो उसकी यूनिवर्सिटी है वो उसको टिकट का भी उसको रिइंबर्समेंट करती है पूरा, so that he can maintain the good work life balance. So in that way companies are trying to maintain to equalize both the aspect. अब आजकल आप देखेंगे कंपनी में क्या होता है, कंपनी में आप देखेंगे कि आजकल जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, है ना, आप देखेंगे जिम भी कंपनी के अंदर है, आप देखेंगे वहां पर मेडिकल रूम भी बना हुआ है, क्योंकि किसी की तबीयत खराब हो वो जाके आराम कर सकता है, ठीक है। और आजकल तो जापान में आपने सुना होगा आजकल ऐसे कैप्सूल बनाए हुए हैं कि वहां जाइए, सो के आ जाइए, पावर नैप लेके आ जाइए, उसके लिए भी कंपनी अलाउ करती है। क्यों कर रही है? क्योंकि कंपनी को पता है कि जे अगर हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे प्रोडक्टिविटी में कोई असर नहीं आ रहा, इवन वो इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर नाउअडेज प्रोवाइडेड टू मेंटेन दीज वर्क लाइफ, एंड दे आर प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल कि वो अपने ऊपर भी ध्यान दे पाए। तो आप देखेंगे वहां कई बार कंपनी में स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, ये आजकल ये जो गेम्स आप देखते हैं, टेबल टेनिस भी लगे हुए हैं, टेबल लगी होती है ना, मोर मेनी मोर थिंग्स आर देयर इन द कंपनी इटसेल्फ। द नेक्स्ट इज रिटेंशन एंड टर्नओवर। तो रिटेंशन मींस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एम्प्लॉय रिटेंशन की हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने एम्प्लॉय को रिटेन रख सकते हैं, जो आपका स्किल्ड एम्प्लॉय है वो आप ही के यहाँ काम करे, कहीं और ना जाए। यू नो इट इज वेरी मच कह सकते हैं फीजिबल और कॉस्ट फ्रेंडली फॉर ए कंपनी टू रिटेन इन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय देन हायरिंग अ न्यू इंडिविजुअल। व्हाई? यानी एक जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको हम रख लें, चाहे हमें 10 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े, हमें 1000 ज्यादा खर्च करने पड़े, ज्यादा बेटर है कंपनी के लिए, कंपेयर टू द सिचुएशन व्हेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट विच इज फ्रेशर फॉर द कंपनी। आई होप ऑब्वियसली यू नो द आंसर कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको अच्छे से पता है कंपनी में काम कैसे होता है, ही इज प्रोड्यूसिंग मच मोर। और जब वो नया एम्प्लॉय आएगा पहले तो उसको ट्रेनिंग दोगे, पता चला 3 महीने की ट्रेनिंग है, सैलरी है 50,000, 1.5 लाख तो ऐसी गई आपके, है ना। और उसके बाद उसको उस काम से फेमिलियर होने में, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जितने लोगों से कनेक्टेड था वो कनेक्शन बनाने में, वो रिलेशन बनाने में उसको सालों लग जाएंगे। इन दैट वे यू विल फाइंड ही विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अप टू द लेवल द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वाज प्रोड्यूसिंग, इट विल टेक नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसलिए हमेशा इट इज गुड फॉर ए कंपनी टू रिटेन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय देन हायरिंग अ न्यू कैंडिडेट फॉर द सेम पोजीशन। इसीलिए रिटेंशन के लिए कंपनी क्या करती है, टाइमली हाइक देती हैं, डीए बढ़ा देती है, एलटीसी देती हैं, है ना, इंश्योरेंस देती हैं, उनको फ्लैट्स भी रहने को देती हैं, अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, है ना, जहां पर कई सारी चीजें फ्री भी होती हैं, सो मेनी फैसिलिटीज नाउअडेज। और जो हम बात करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना होगा ना कि ये आजकल भी क्या, ये हमेशा से रहा है, हमेशा से नहीं, मैं बताऊँ कब से रहा है, 1980s के बाद से, 1990s के बाद से जो गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ी, पहले नहीं थी, पता है वो। अगर मैं अपने नाना से बात करता था या दादा से बात करता था तो वो बताते थे कि वो आते थे और वहां कैंप लगाते थे कि भैया जॉब ले लो। लोग जाते नहीं थे जॉब करने के लिए, सरकारी जॉब की बात कर रहा हूँ मैं उस समय, क्योंकि सरकारी जॉब में इतना पैसा ही नहीं था, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। ये पैसा हुआ है तब से जब से 6th पे लगा। 6th पे आया था कब, नियर अबाउट 2000 जो ईयर है उसके आसपास आया था, 2004 या 2005। और 7th पे कमीशन जो आया है उसमें सैलरी है वो और ज्यादा बढ़ गई, फैसिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। अब आज देखेंगे हर कोई क्या चाहता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कैसे भी मिल जाए गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा कि जो एक क्लर्क की जॉब आ रही है या एक पियून की जॉब आ रही है, उसके लिए पीएचडी वाला भी अप्लाई कर रहा है, उसके लिए एमबीए वाला भी अप्लाई कर रहा है, उसके लिए बीटेक वाला भी अप्लाई कर रहा है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ कि ऐसा क्यों अट्रैक्शन है इतना ज्यादा।
द मेजर फैक्टर इज स्टेबिलिटी, कि वहां से अगर एक बार आप जॉब पे लग जाओगे कोई हटा नहीं सकता। यानी अगर आप काम पर आ रहे हो, रेगुलर आ रहे हो, तो आपको हटा तो कोई सकता नहीं कभी। कंपनी में क्या है, जब तक आप परफॉर्म करके नहीं दिखाओगे, जो टारगेट आपको दिया हुआ वो जब तक अचीव नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपको कल ही निकाल दिया जाए। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो हायर एंड फायर पे काम करती हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, पॉलिसी बाजार, इंडिया मार्ट जैसी कंपनीज, इवन टीसीएस यू कैन सी नाउ। जब डाउनफॉल आया तो टीसीएस भी 1000 एम्प्लॉय को निकाल रही है अपने, है ना। वो भी नहीं उनको कहते हैं रिटेन कर पा रही है, कैपेसिटी नहीं है उसके पास। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी आ जाए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को गवर्नमेंट निकालेगी नहीं। निकाला था, लेकिन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को कोई दिक्कत नहीं हुई, सैलरी टाइम पर मिले, कुछ नहीं हुआ। और आप देखेंगे, मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, बीएसएनएल। बीएसएनएल क्या आजकल कोई यूज करता है? उसके अभी भी हजारों एम्प्लॉय है, क्या कर रहे हैं बताइए? कुछ नहीं कर रहे। और जो है लैंडलाइन थोड़े बहुत बचे हुए हैं, या जो बीएसएनएल की सिम चल रही है, बस उन्हीं को देख रहे हैं। आपको पता है बीएसएनएल के पास 4G अभी आया है पिछले साल। हम 4G कब से यूज कर रहे हैं? सालों हो गए ना यूज करते हुए। बीएसएनएल के पास पिछले साल ही 4G का स्पेक्ट्रम आया है, वो ले ही नहीं पाया। गवर्नमेंट का होके गवर्नमेंट से नहीं ले पाया, उसकी बोली नहीं लगा पाया, पैसे नहीं दे पाया। तो सोचिए 5G कब आएगा उसके पास। एयरटेल जैसी कंपनी, जो बाकी कंपनी है वो तो प्रोवाइड कर रही है आज की डेट में, उसके लिए भी बहुत दूर की बात है। वो सोचेगा 5-7 साल बाद 5G लाने की। तो ये हाल है। और इसके लिए कंपनी ने अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके एम्प्लॉय को निकाला नहीं, उनको एक वीआरएस की स्कीम दी थी, अगर आपको पता हो। वीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय का घाटा बिल्कुल नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। क्यों? क्योंकि सपोज जब हम किसी एम्प्लॉय को वीआरएस देते हैं, तो उसको जो उसके फंड के फॉर्म में काफी बड़ी अमाउंट उसे दी जाती है, जिससे कि वो आगे आने वाले सालों को सर्वाइव कर सके। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, जो हमने देखा ना इंडियन आर्मी, जैसे इंडियन आर्मी, वहां पर क्या प्रोविजन है, कितने साल में वीआरएस मिलता है? 15 साल। यानी अगर आप सपोज 12th के बाद आप इंडियन आर्मी के सोल्जर बन जाते हो, 15 साल आपने सर्वाइव कर लिए, कितना फंड मिलेगा आपको? इट इज अराउंड 50 लाख। सोचिए 12वीं क्लास में आपकी एज कितनी रही होगी? 18-19 साल। 15 साल जोड़ दीजिए, उसमें कितने हो गए? 34, 35 मान ले मैक्सिमम। 35 की एज में आप 50-60 लाख के मालिक हो, उसके बाद आप कोई भी जॉब और कर सकते हो। अरे अब करती ना, मैं अब पहले की बात कर रहा हूँ, ये अभी की ना 1-2 साल से, उसके पहले की बात हो रही है। तो सोचो कितना अच्छा था वीआरएस स्कीम। सिमिलरली गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड दिस वीआरएस स्कीम टू द एग्जिस्टिंग बीएसएनएल एम्प्लॉइज ऑल्सो। जिन्होंने ली उनको बेनिफिट मिल गया, जिन्होंने नहीं ली वो आज भी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं वो जाने, हमें पता ही नहीं, है ना। जैसे पोस्ट ऑफिस थे, डाक तो जाना बंद हो गया ना, उसको बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, है ना। वो तो काम उनको मिल गया, लेकिन बीएसएनएल में तो भी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी सिम आज भी चल रही है, जितनी चल रही है पर चल रही है, उसी को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, वही नेटवर्क को देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं। तो ये है गवर्नमेंट का फायदा। इसके अलावा और क्या फायदे हैं गवर्नमेंट के, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्टिव रहें, और आपके पास अभी बेस्ट टाइम है। अभी आप सेकंड ईयर में ना बीएमएस के, यू हैव कंप्लीटली 1.5 ईयर इन योर हैंड। आप इसमें तैयारी कर लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, जो भी आपका टारगेट है, और गवर्नमेंट जॉब आपकी श्योर है अगर आप अभी से लग जाते हैं। आई एम टेलिंग, आई कैन कमिट इट, कि अगर आप सीरियसली कॉन्सेंट्रेट होकर आज से भी अगर तैयारी स्टार्ट कर देते हो, तो आप 100% श्योर मानिए कि आपकी जॉब लगनी ही लगनी है। चाहिए क्या? कॉन्सेंट्रेशन एंड डिसिप्लिन। ये 2 चीज अगर आपके पास है, रेगुलरिटी से अगर आप सारी चीजें कर रहे हैं, डेफिनेटली अचीव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, चाहे आप बैंक की बात कर लीजिए, चाहे आप इनमें ये नेवी की जो आती है वैकेंसीज आती हैं, उसके लिए भी आपकी एज एलिजिबल होती है। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जाने के लिए, इट्स अप टू यू ओनली। तो दूसरा बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़ी बड़ी कंपनी देती है और 90% कंपनी देती ही नहीं है। फीमेल के लिए बेनिफिट बता देता हूँ, फीमेल ज्यादा बैठी है ना। हेल्थ बेनिफिट्स, और उसके अलावा हेल्थ बेनिफिट तो मेल कैंडिडेट के लिए भी है। मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, है ना। शादी सबकी होनी है, कोई भी ऐसा तो नहीं सन्यास बनने वाला होगा ना, शादी सबकी होगी, बच्चे सबके होंगे। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रेगनेंसी, तो उस टाइम में 6 महीने की पेड लीव सिर्फ गवर्नमेंट में मिलती है, और बड़ी कंपनीज में मिलती है। टीसीएस जैसी कंपनी है, विप्रो जैसी कंपनी ये प्रोवाइड कर रही है, टाटा भी प्रोवाइड नहीं कर रही है, टाटा 2 महीने की देती है। तो 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यू कैन अवेल।
जब आप अप्लाई करोगे तभी से मिलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपके ऊपर कितना प्रेशर हो, कितना भी टारगेट हो, आपको वो लीव मिलेगी ही मिलेगी, भले ही वो काम आपकी जगह कोई भी करे। नो वन कैन डिनाई दिस लीव, और किसी ने डिनाई कर दी तो उसका सस्पेंशन पक्का है, ये भी गारंटी है। इस लीव को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और ये कितने चाइल्ड पर है? 2 चाइल्ड पर। तो सोचिए आपके 6 × 2 यानी 1 साल तो आपका पूरा पेड आपको दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से फॉर योर प्रेगनेंसी पीरियड ओनली। इन एडिशन टू दिस, और बताऊं उसके बेनिफिट्स थोड़े से। इसके बाद आपको मिलती है पर चाइल्ड 1 साल की चाइल्ड केयर लीव, यानी 365 डेज फॉर केयरिंग 1 चाइल्ड ईच फॉर 2 इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी 730 डेज की लीव आपके पास है। वो आप कैसे ले सकते हैं कि सपोज आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आपने 1 महीने की छुट्टी ले ली, आपके बच्चे के एग्जाम है, आपने छुट्टी ले ली। इस चीजों के लिए भी गवर्नमेंट छुट्टियां देती है, वो भी पेड होती हैं पूरी पूरी। तो कितने साल हो गए आपके? 3 साल आपकी लीव ऐसी हैं जो आपको पेड बेसिस पर मिल रही हैं, और उसकी आपकी कोई सैलरी डिडक्शन कभी नहीं होगा, और ना इसका असर आपके कैरियर पर, आपकी ग्रोथ पर, आपके प्रमोशन पर कहीं नहीं पड़ने। तो दिस इज द वेरी मच वी कैन से द अट्रैक्टिंग पॉइंट्स, है ना, अदर देन सैलरी। सैलरी आप जानते हैं कि वो आपकी टाइमली बढ़ती रहेगी, साल में 2 बार आपका डीए लगेगा, सैलरी बढ़नी है। और जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो जो लेवल चेंज होते हैं सैलरी के, वो चेंज अपने आप हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रेगुलरली काम करना है। ये तो होता है ना, अब सबको यही चाहता है ना, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत भी लगती है। जो मेहनत में आगे रहते हैं उन्हीं को ये बेनिफिट मिल पाते हैं, अदरवाइज यू नो कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है, वहां आप जानते हैं आपके नियर बाई जो आपके लोग हैं कॉन्टेक्ट में, वो कैसे काम कर रहे हैं, यू नो वेरी, है ना, कितना प्रेशर रहता है। छुट्टी भी लेनी होती है तो वो कई महीने पहले अप्लाई करनी पड़ती है, कई दिन पहले अप्लाई करनी पड़ती है, और वो अगर उसने मैनेजर ने रिजेक्ट कर दी तो वो आप सीएल ले ही नहीं पाओगे अपनी, है ना। बट इन दिस सिस्टम इट इज नॉट लाइक दैट, वेन एवर यू वांट यू कैन हैव इट, ठीक है। तो दीज आर सम बेनिफिट्स। सो यही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, रिटेंशन एंड टर्नओवर। तो शायद इसलिए वेन एवर यू आर गेटिंग अ जॉब इनटू अ गवर्नमेंट सेक्टर, नो वन ट्राई टू इवन लीव दोस काइंड ऑफ जॉब्स, ठीक है। कब लीव करते हैं? जब वो 60 के आसपास पहुंचते हैं। 60 के आसपास यू विल गेट द रिटायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बट यू कैन गेट द जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। इन दैट बेसिस ओनली यू आर गोइंग टू प्राइवेट, अदरवाइज नॉट। तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे इन मोर डिटेल, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्कोप ऑफ एचआरएम। सो एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नहीं, प्रोसेस नहीं है ये। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स विच कम्स अंडर द हेड ऑफ एचआरएम, या हम कह सकते हैं दीज आर डिफरेंट चैप्टर्स, दीज आर द डिफरेंट बाउंड्रीज, और एचआर के क्या काम है वो यही सब। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? So I will be teaching this subject ahead also in your class, ठीक है, in your BMS, and definitely I will share when we have this team class, online class. I will share all these slides well in advance with you. The at least unit 1 I will share. हाँ, वही आपको मिल जाएगी ना, बेस्ट है आपके लिए भी, ठीक है, easily you can download from there, ठीक है। Any other question from your side? No question, ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए। थैंक यू सो मच। और पार्टिसिपेट क्या करो आप लोग, है ना, पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है आपसे।